क्लास आप सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, मैं बता दूं कि एसएससी कैटेगरी में बैच चल रहा है जेई और एई के लिए। एसएससी कैटेगरी में बैच चल रहा है जेई और एई के लिए। और उस बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अभी उसमें 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, एक पावर सिस्टम, एक मेजरमेंट और नेटवर्क थ्योरी। उसमें राहुल सर ने पावर सिस्टम, खेमेन सर ने मेजरमेंट और मैंने नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया है। नेटवर्क थ्योरी के तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे मशीन। तो जो बच्चे जेई, एई, यूपीपीसीएल या किसी भी एई जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन गेट एडमिशन इन द एसएससी कैटेगरी। और डिस्काउंट के लिए आप RK11 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और अगर आपको कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो मैसेज करके, एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई मेल ID rajkumar singh730@gmail.com। यही मेरा फेसबुक है, यही मैसेंजर भी है, यही आपका ईमेल ID है। तो अगर आपको कोई डाउट है एसएससी कैटेगरी से रिलेटेड, अनअकैडमी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एसएससी जे एग्जाम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। आर यू रेडी? चेंटू, चलिए आज हम डीसी मशीन स्टार्ट करते हैं और डीसी मशीन के जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके पास आता है कि डीसी मशीन 2 पार्ट में टूटती है, एक डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर। डीसी मोटर क्या करती है? इट टेक्स इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड गिव्स मैकेनिकल आउटपुट। डीसी मोटर टेक्स इलेक्ट्रिकल इनपुट, गिव्स मैकेनिकल आउटपुट। एंड डीसी जनरेटर टेक्स मैकेनिकल इनपुट, डीसी जनरेटर टेक्स मैकेनिकल इनपुट एंड गिव्स इलेक्ट्रिकल आउटपुट। So this is all about DC motor and DC generator. The next question is, what is the working principle of DC motor? What is the working principle of DC motor? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force acts on it and due to that force the motor rotates. What is the working principle of DC motor? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force acts on it and due to that force it rotates. What is the working principle of DC generator? When flux passing with a coil changes, then an EMF is induced. When flux passing with a coil changes, then an EMF is induced in the coil. So this is what? This is Faraday's law of electromagnetic induction. So this is the principle of DC generator, that flux is changing and that's why the EMF is induced. Means that is Faraday's law. What is the principle of motor? When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, then a force acts on it. How will you determine the direction of rotation of motor? How will you find that in which direction DC motor will rotate? Can you tell me the name? मुझे नाम बताओ। With the help of which law you can predict that in which motor DC motor will rotate, in which direction DC motor will rotate, clockwise or anti-clockwise? You can tell that in which direction DC motor will rotate with the help of Fleming left hand rule. With the help of Fleming left hand rule you can tell the direction. Fleming left hand rule, देवोजी दत्ता का कहना सर यू एक्सप्लेन ब्रिलियंटली, सब याद रह जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हिच रूल इज एप्लीकेबल इन डीसी जनरेटर? Which rule? Then it is Fleming right hand rule. Fleming right hand rule is used. Fleming right hand rule is used in a DC generator to find what? Fleming right hand rule is applicable, is used in DC generator to find what? To find the direction of induced current or induced EMF in the DC generator, because motor produces torque. So in which direction motor will rotate, that you can predict with the help of Fleming left hand rule. And DC generator takes electrical input and takes the mechanical input, gives the electrical output. So in which direction current or voltage is produced, that direction you can predict with the help of Fleming right hand rule. So Fleming left hand rule in DC motor, Fleming right hand rule in DC generator. Now the next question is, the winding which you use on a stator is called what? The winding which we provide on a stator, the winding on a stator is called what? It is called field winding. And the winding on rotor is called armature winding. I am asking you a question, why in synchronous machine the winding on rotor is called field winding, the winding on rotor is called field winding, and the winding on stator is called armature winding, but in DC machine the story is different. Here the winding on stator is called field winding and winding on rotor is called armature winding. Why there is a different name? Can you tell me
ये नाम अलग अलग क्यों है? सिंक्रोनस मशीन में स्टेटर की वाइंडिंग को अगर हमने आर्मेचर वाइंडिंग बोला है तो यहां पे फील्ड वाइंडिंग क्यों बोल दिया, और अगर सिंक्रोनस मशीन में रोटर की वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोला है तो यहां रोटर की वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग क्यों बोला? बोलो। जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट वाइंडिंग इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग। In synchronous machine, the EMF is induced in the armature winding. In stator winding, that's why stator winding is called armature winding. And here, the EMF is induced in the rotor winding. In DC generator, if you will see, the EMF is induced in the rotor winding. That's why rotor winding is called armature winding. In synchronous machine, the EMF is induced in stator winding. That's why stator winding is called armature winding. What is the purpose of DC generator? To produce the EMF, right? So the winding on stator is called field winding, the winding on rotor is called armature winding. अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है, अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों पैरेलल में है तो उसको बोलते हैं डीसी शंट मोटर या डीसी शंट जनरेटर। और अगर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में है तो उसको बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर या डीसी सीरीज जनरेटर। और अगर फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है एंड सम पार्ट इज इन सीरीज, अगर फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा आर्मेचर के पैरेलल में है और कुछ हिस्सा आर्मेचर के सीरीज में है, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड मोटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मोटर और कंपाउंड जनरेटर। Array, suppose this is your armature winding. If field winding is in parallel, it will be shunt. If field winding is in series, it will be series. If some part of field winding is in parallel and some part is in series, some part in parallel, some part in series, then it will be what? It will be compound, right? Now the story is, what is the formula of EMF induced in DC generator? What is the formula of EMF induced in DC generator? The formula of EMF induced in DC generator is NPZ phi upon 60A. What is N? The N is speed of rotation, P is number of pole, Z is total number of conductor, phi is flux per pole, A is number of parallel path. A is number of parallel path. Here PZ upon 60A, it is a constant, so you write EG or EA is K phi N, where K is a constant, and K is PZ upon 60A. So EMF induced in a DC generator or DC machine depends on phi and depends on number of speed of rotation. जितनी तेजी के साथ घुमाओगे उतना ज्यादा EMF होगा, या जितना ज्यादा फ्लक्स पर पोल होगा उतना ज्यादा EMF होगा. So EMF induced depends on the speed of rotation and the flux per pole in case of DC generator. Now the question is, see, if there is a lap winding machine, see, if lap winding machine is there, so lap winding में A is equal to P, number of parallel path is always equal to number of pole. So if A is equal to P, so A and P will be cancelled because they are equal. So EG की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी EG की वैल्यू, P और A कैंसिल हो जाएगा, N Z phi upon 60, यही तो होगा. A और P हमेशा बराबर होंगे तो A और P कैंसिल हो जाएंगे, EG होगा N Z phi upon 60. यहां से अगर देखो लैप वाइंडिंग में अगर मैं कहूं नंबर ऑफ पोल को डबल कर दिया, नंबर ऑफ पोल को 4 गुना कर दिया, तो क्या EMF पे कोई फर्क पड़ेगा? आप नंबर ऑफ पोल को कम करो ज्यादा करो, EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर लैप कनेक्टेड डीसी मशीन है तो, अगर लैप कनेक्टेड डीसी मशीन है तो आप नंबर ऑफ पोल को आइदर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, EMF पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. क्यों? बिकॉज A एंड P आर ऑलवेज इक्वल. अगर ये 4 तो ये 4, ये 10 तो ये 10, ये 20 तो 20, वो कैंसिल हो जाएगा. तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ पोल इज इंक्रीज, नंबर ऑफ पोल इज डिक्रीज, नंबर ऑफ पोल इज इंक्रीज टू 6 times, 10 times. What is effect on EMF? There is no effect on in case of lap winding. But if there is wave winding, what is effect? A is equal to what? A is equal to always 2. So put A is equal to 2. So easy will be NPZ phi upon 16 to A. A is equal to 2, it will be 120. From here you can see that EG is directly proportional to P. Means if number of pole is increased 2 times, then induced EMF will increase 2 times. अगर पोल को 4 गुना बढ़ाएंगे तो EMF 4 गुना बढ़ेगा, इसको 6 गुना बढ़ाएंगे तो 6 गुना बढ़ेगा. मगर यहां पे अगर नंबर ऑफ पोल को बढ़ाओगे घटाओगे तो EMF पे फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक डीसी मशीन है, हमने पोल की संख्या में परिवर्तन किया, कम किया, ज्यादा किया, लेकिन EMF पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वाइंडिंग कैसी होगी, लैप या वेव? कैसी होगी, लैप या वेव? इट विल बी लैप, लैप,
बिकॉज ए इक्वल टू पी। और अगर वेव की बात करें हम, वेव में जितना पोल बढ़ाओगे उतना ईएमएफ बढ़ेगा, जितना पोल बढ़ाओगे उतना ईएमएफ बढ़ेगा, जितना पोल घटाओगे उतना ईएमएफ घटेगा, बिकॉज ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अरे यहां भी है तो ये और एक कैंसिल हो जा रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है समझ में चिंटू, ये कहानी आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि जो मोटर होती है उसमें जो टॉर्क पैदा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है K phi into IA। दिस इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो टॉर्क पैदा होता है उसका जो फार्मूला होता है, अर्जुन सिंह इज सेइंग सर व्हाट इज पोल, torque is K phi into IA. K is constant, phi is flux per pole, IA is armature current, means torque is directly proportional to flux per pole, torque is directly proportional to armature current। यानी जितनी ज्यादा आर्मेचर करंट होगी या जितना ज्यादा फ्लक्स पर पोल होगा उतना ज्यादा होगा टॉर्क, उतना ज्यादा होगा टॉर्क। फिर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डीसी मोटर है, सपोज ये डीसी मोटर है आपके पास, मान लीजिए डीसी शंट मोटर है, सपोज इट इज डीसी शंट मोटर। आपने सप्लाई वोल्टेज दिया कितना V, यहां पे जो वोल्टेज आया वो कितना आया, यहां पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज ईवी बैक ईएमएफ, यहां से करंट चल रही है आई। डीसी मोटर के केस में अगर हम मैक्सिमम पावर डेवलप करना चाहें तो ईबी और वी में क्या रिलेशन है, इन केस ऑफ डीसी मोटर इफ यू वांट टू डेवलप मैक्सिमम पावर व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वीबी, एंड इफ यू वांट टू डेवलप मैक्सिमम पावर द ईबी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, मींस ईबी इज इक्वल टू वी बाई टू। ईबी इज इक्वल टू वी बाई टू मींस बैक ईएमएफ जो होना चाहिए वो सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर। इफ दिस इज 200 दिस विल बी 100, इफ दिस इज 600 दिस इज 300, दिस इज 1000 दिस इज 500, फॉर व्हाट, फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। तो अगर आप चाहते हो डीसी मशीन में मैक्सिमम पावर डेवलप हो तो उसकी शर्त यह है कि जितना सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए उसका आधा होना चाहिए बैक ईएमएफ। और मैक्सिमम डेवलप्ड पावर के केस में कंडीशन तो ये पढ़ लिया आपने, मैक्सिमम पावर के केस में एफिशिएंसी कितनी होती है, दैट इज 50%। Efficiency is how much? It is 50%। आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में, when power is maximum the efficiency is 50%। Here also if DC machine is producing maximum power or developing maximum power then efficiency is 50%। These are the basic key points that you must remember। These are the basic points which you must remember। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और गलत नहीं करना है। अर्नव is saying your teaching style is very impressive। नेक्स्ट पॉइंट, इतना आ रहा है समझ में कि नंबर ऑफ पोल घटाया बढ़ाया लेकिन ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वाइंडिंग कैसी, लैप। नंबर ऑफ पोल को जितना बढ़ाया उतना ही ईएमएफ बढ़ा, इसका मतलब वाइंडिंग कैसी, वेव। टॉर्क का फार्मूला क्या है मोटर में, K phi into IA। बैक ईएमएफ बराबर होना चाहिए V by 2 के, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड पावर। एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम डेवलप्ड पावर व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज 50%। एफिशिएंसी इज 50% इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में कुछ कांस्टेंट लॉसेज होते हैं और कुछ वेरिएबल लॉसेज होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से लॉसेज कांस्टेंट होते हैं और कौन से लॉसेज वेरिएबल होते हैं। टेल मी, देयर आर सम कांस्टेंट लॉसेज एंड सम वेरिएबल लॉसेज। ऐसा लॉस जो आईए बदलने के साथ, ऐसा लॉस जो आईए मींस आर्मेचर करंट बदलने के साथ बदलता नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, और ऐसा लॉस जो आईए बदलने के साथ बदल जाता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल लॉस। द लॉस व्हिच चेंजेस विद चेंज इन आईए इज कॉल्ड वेरिएबल लॉस, एंड द लॉस व्हिच डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन आईए इज कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। तो कांस्टेंट लॉस कौन कौन सा होता है डीसी मशीन में, कांस्टेंट लॉस कौन कौन सा होता है, पहला डीसी मशीन में होने वाला कोर लॉस और शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला लॉस, शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला लॉस और कोर लॉस, और कौन सा लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। This is F and W loss that is also called mechanical loss। मैकेनिकल लॉस, ये तीन जो लॉस होते हैं ना, शंट फील्ड वाइंडिंग में होने वाला या कोर में होने वाला आर्मेचर की कोर में या फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ये तीनों को दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। और वेरिएबल लॉस कौन कौन सा होता है बताओगे आप लोग, जरा बताओ वेरिएबल लॉस का नाम, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ वेरिएबल लॉस। ऐसे कौन कौन से लॉस होते हैं, पहला सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाला जो लॉस है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में होने वाला जो पावर लॉस है दैट इज वेरिएबल लॉस। और आर्मेचर में होने वाला जो कॉपर लॉस है, आर्मेचर कॉपर लॉस दैट इज आल्सो वेरिएबल लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस मींस दिस इज IA स्क्वायर RA लॉस।
आर्मेचर में करंट आईए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस आरए, आईए स्क्वायर आरए लॉस, दिस इज आर्मेचर कॉपर लॉस। एंड नेक्स्ट इज ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, जो ब्रश होता है ना आर्मेचर के ऊपर, मान लीजिए ऐसे आप बनाते हो ना रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप, मान लीजिए 1 वोल्ट यहाँ 1 वोल्ट यहाँ, तो इसकी वजह से भी कुछ पावर का लॉस होता है, दैट इज वेरिएबल लॉस। तो ये तीनों वेरिएबल लॉस होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है विच आर द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉस, विच आर द फॉलोइंग इज कांस्टेंट लॉस। ऐसे आएगा विच आर द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉस, दिस 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 एंड दिस, क्या बोलोगे? दिस। विच आर द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉस, दिस 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 एंड दिस, क्या बोलोगे? दिस। विच आर द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉस, दिस 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 एंड दिस, क्या बोलोगे? दिस। विच आर द फॉलोइंग इज कांस्टेंट लॉस, दिस 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 एंड दिस, क्या बोलोगे? दिस। विच आर द फॉलोइंग इज कांस्टेंट लॉस, दिस 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 एंड दिस, क्या बोलोगे? दिस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है डीसी मशीन में। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीसी मशीन? एंड द कंडीशन इज कांस्टेंट लॉस मस्ट बी इक्वल टू वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस बराबर ही होना चाहिए किसके? वेरिएबल लॉस के, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ डीसी मशीन। व्हाट इज कांस्टेंट लॉस? दिस प्लस दिस प्लस दिस। व्हाट इज वेरिएबल लॉस? दिस प्लस दिस प्लस दिस। निखिल बोल रहे हैं सर योर सेशन आर स्ट्रेस रिलीफर। नितेश का कहना है सर धीरे पढ़ाइए। अरे आई एम एट फुल लोड। नो, मोटर में भी एट नो लोड बट आई एम एट फुल लोड। चिंटू कह रहा है सर धीरे पढ़ाओ। मैं तो धीरे ही पढ़ाता हूं, कभी कभी फुल लोड वाली क्लास होती है, अदरवाइज मैं नो लोड पे ही पढ़ाता हूं। बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं मैं, ऐसा कि बच्चा सो जाए। तो ये कहानी है कि कौन कौन सा लॉस वेरिएबल होता है और कौन कौन सा लॉस कांस्टेंट होता है। तो हमने आपको बता दिया, इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि मान लो आपके पास डीसी शंट मोटर है, सपोज दिस इज योर डीसी शंट मोटर, दिस इज योर डीसी शंट मोटर एंड दिस इज योर डीसी सीरीज मोटर। सपोज क्वेश्चन ये आता है कि फील्ड वाइंडिंग में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सीरीज में या शंट में? फील्ड वाइंडिंग में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा और किसका रेजिस्टेंस कम होता है? कभी थियरी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखोगे क्यों ज्यादा क्यों कम या क्यों ये सब रीजन होता है। अभी के लिए बस इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि फील्ड वाइंडिंग ये है, फील्ड वाइंडिंग ये हो, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका जो रेजिस्टेंस होता है शंट फील्ड वाइंडिंग का, इसका रेजिस्टेंस होता है क्या? ज्यादा। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। और रेजिस्टेंस होता क्या है? आर एल अपान ए। रेजिस्टेंस ज्यादा तभी होगा जब एरिया क्या होगा? कम। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा मींस एरिया कम, मींस जो ये टर्न्स होते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग के, ये होते हैं थिन टर्न होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप शंट मोटर में देखोगे तो वाइंडिंग में जो टर्न्स होते हैं फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा संख्या में होते हैं, पर टर्न्स होते हैं पतले पतले। टर्न्स होते हैं पतले 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 पतले। टर्न्स पतले क्यों होते हैं? एरिया कम होगा। राजेंद्र बोल रहे हैं हाउ मेनी ब्रशेज आर रिक्वायर्ड। अरे आएंगे, ब्रशेज की संख्या किसके बराबर होती है, लैप और वेव वाइंडिंग बताएंगे। एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा ही लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं उसका कारण जब आप डीसी मशीन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। एरिया कम का मतलब टर्न्स पतले होते हैं लेकिन टर्न्स की संख्या ज्यादा होती है। सो इन डीसी शंट मोटर द फील्ड वाइंडिंग हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स बट द थिकनेस ऑफ द टर्न इज स्मॉल। थिकनेस ऑफ द टर्न इज स्मॉल मींस रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज हाई। सीरीज में इसका उल्टा है। सीरीज वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है फील्ड वाइंडिंग का वो क्या होता है? कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब समझ रहे हो, रो एल अपान ए। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब एरिया ज्यादा। एरिया ज्यादा होने का मतलब इसके टर्न्स कैसे होते होंगे? टर्न्स होते होंगे थिक। अरे हाँ या ना चिंटू? टर्न्स कैसे होंगे? थिक टर्न। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने कैसे होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स आर स्मॉल। तो यहां टर्न्स की संख्या कम, यहां टर्न्स की संख्या ज्यादा। यहां पे रेजिस्टेंस कम, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा। यहां पे वाइंडिंग मोटी, यहां पे वाइंडिंग पतली और यहां पे वाइंडिंग मोटी। समझ आ रही कहानी? तो पूछेगा सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग में कहां रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कहां वाइंडिंग पतली होती है, कहां वाइंडिंग मोटी होती है, कहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम या कहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा, कहां पे रेजिस्टेंस कम। बात आ रही समझ में या नहीं? तो ये शंट और सीरीज की कहानी है, फील्ड वाइंडिंग की कहानी है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, डीसी शंट मोटर जो होती है, डीसी शंट मोटर इट इज ए कांस्टेंट स्पीड मोटर।
ऑलमोस्ट स्पीड इसकी कांस्टेंट होती है। अगर लोड थोड़ा बहुत बढ़ाओगे आप तो भी स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है। लोड बढ़ाओगे तो स्पीड थोड़ी बहुत घटेगी, लोड बढ़ाओगे तो स्पीड थोड़ी बहुत घटेगी, मगर लगभग उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड मोटर हम बोलते हैं किसको? डीसी शंट मोटर को। दूसरा, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी होती है। ये कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी होती है, इसमें फ्लक्स भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट फ्लक्स मोटर बिकॉज फ्लक्स इसको, अरे अगर ये वोल्टेज मान लो डीसी मोटर है, आप ये वोल्टेज दोगे, अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट तो ये वोल्टेज कांस्टेंट, अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो तो फिक्स ही होगा, कम हो ज्यादा कुछ भी वो फिक्स है। रेजिस्टेंस फिक्स, वोल्टेज फिक्स, इसमें जाने वाली करंट क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। देखो जाने वाली करंट ISH क्या होगी? V/RSH। दिस इज V, वोल्टेज इज फिक्स। ये भी वोल्टेज एक बार दे दिया, वो दे दिया, रेजिस्टेंस फिक्स। तो अगर ये फिक्स तो जाने वाली करंट फिक्स, और अगर जाने वाली करंट फिक्स तो जो आएगा फ्लक्स भी फिक्स, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है एक तो करंट पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे। टर्न्स की संख्या जो भी है कम ज्यादा हो फिक्स है। तो अगर करंट फिक्स हो गई तो फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर, डीसी शंट मोटर इज कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। सीरीज मोटर की अगर आप बात करोगे, सीरीज मोटर की अगर आप बात करोगे तो इसमें जो है नो लोड स्पीड इज वेरी हाई। नो लोड स्पीड इज वेरी हाई, इसका मतलब यह है कि अगर कभी आपने इसको नो लोड पे स्टार्ट कर दिया तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। टेक समीर का कहना है सर आपकी ऑडियो ही काफी है, बस विजुअलाइजेशन की जरूरत है। बिल्कुल विजुअलाइजेशन की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि पूरा फ्लैशबैक में आपको सब जाके याद करना पड़ेगा। खुशहाल सोनी का बोल रहे हैं गर्दा उड़ा दिए सर। नो लोड स्पीड डीसी सीरीज मोटर में बहुत हाई होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कभी गलती से आपने बिना लोड लगाए डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट कर दिया, अगर आपने कभी बिना लोड लगाए डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट कर दिया तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि चिंटू का थोबड़ा बिगड़ जाएगा। तो गलती से कभी भी बिना लोड लगाए मत स्टार्ट करना डीसी सीरीज मोटर को। नेवर स्टार्ट डीसी सीरीज मोटर विदाउट लोड इज कनेक्टेड टू इट और विदाउट मैकेनिकली कनेक्टेड लोड। ठीक है। दूसरी चीज, द स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई। स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई इन डीसी सीरीज मोटर, स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी हाई। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसी जरूरत है जहां पे शुरू में ही बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो वहां पे आप डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल कर लोगे। मान लीजिए यहां से ट्रेन चल रही है बी तक, बी से चल रही है सी तक, सी से जा रही है डी तक। यहां से ट्रेन चली, जब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ती बी स्टेशन पे पहुंच गई, फिर बी से जैसे जैसे रफ्तार पकड़ती सी तक पहुंचती, फिर रुक गई। सी से जैसे रफ्तार पकड़ती डी तक रफ्तार पकड़ी, तब तक फिर रुक गई क्योंकि स्टेशन आ गया। तो रफ्तार पकड़ने में ही अगला स्टेशन आ जा रहा है, तो फिर ट्रेन बहुत टाइम लेगी अपने मंजिल तक पहुंचने में। तो हमने क्या किया, ऐसी मोटर लगाई जैसे ही यहां से ऐसे स्टार्ट हो ट्रेन, पूरा स्पीड पकड़ ले, बी तक जाए फिर रुक जाए, फिर सी तक जाना है फिर रफ्तार पकड़ ले। सो आप ऐसा कोई एप्लीकेशन जहां पे शुरुआत से क्रेन है कि किसी लोड को, भार को उठाना है और तेजी के साथ उठाना है, तो ऐसा कोई भी इस्तेमाल जहां पे शुरुआत में ज्यादा टॉर्क चाहिए उसको उठाने के लिए, उस जगहों पे आप डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल कर सकते हो। खैर आजकल हम डीसी सीरीज मोटर को रिप्लेस करते जा रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर से। नाउअडेज डीसी सीरीज मोटर इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय 3 फेज इंडक्शन मोटर। मगर एग्जाम में आया तो आप डीसी सीरीज मोटर टिक करना, क्योंकि एग्जाम में यही सही मानेंगे वो। ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है, दैट्स व्हाई दिस इज यूज्ड वेयर ए वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड, लाइक क्रेन, लाइक ट्रेन यू कैन यूज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर डीसी सीरीज मोटर की घूमने की दिशा को क्या करना हो, बदलना हो, तो क्या करेंगे? डीसी सीरीज मोटर के घूमने की दिशा को, सीरीज हो या शंट हो, एक डीसी मोटर है उसके घूमने की दिशा को बदलना है। किसको? घूमने की दिशा को। क्यों? चिंटू गया नौकरी लगने के बाद बबली के साथ गया प्रदर्शनी देखने, और बबली झूले पे बैठी थी, झूला ऐसे ऐसे चल रहा था, बबली बैठी हुई थी, चिंटू यहाँ खड़ा होकर देख रहा था, और बबली झूल रही थी, उसका दुपट्टा उड़ रहा था, चिंटू के चेहरे पे आ रहा था। ठीक है। अब चिंटू से बबली ने कहा कि मुझे चक्कर आ रहा है, जिस दिशा में झूला चल रहा है उस दिशा में घूमने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। ऐसा करो तुम इसके घूमने की दिशा को बदलो, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ दिस मोटर। चिंटू ने कहा क्यों, डायरेक्शन में क्यों बदलूं, झूला चल तो रहा है। बबली ने कहा मुझे चक्कर आ रहा है।
तो चिंटू ने कहा, तुरंत चिंटू ने राजकुमार सर के मशीन के नोट्स निकाले, पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट किया, डीसी मशीन खोला और उसमें लिखा हुआ था यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए डीसी मोटर आइदर बाय रिवर्सिंग आर्मेचर टर्मिनल और बाय रिवर्सिंग फील्ड टर्मिनल, नेवर रिवर्स आर्मेचर एंड फील्ड टर्मिनल टुगेदर। चिंटू ने देखा, तुरंत चिंटू ने आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स किया और ये जो झूला ऐसे ऐसे चल रहा था वो ऐसे ऐसे झूलने लगा। लेकिन बात यह है कि झूला तो घूमने लगा, लेकिन जो दुपट्टा अभी तक चिंटू के चेहरे पे आ रहा था, अब वो चिंटू का दोस्त जो मिंटू था उसके चेहरे पे दुपट्टा जाने लगा। खैर वो बात तो अलग है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। देखो, मोटर रिवर्स तब होगी जब उसमें पैदा होने वाला टॉर्क रिवर्स होगा। मोटर रिवर्स तब होगी जब उसमें पैदा होने वाला टॉर्क रिवर्स होगा। एंड दिस द फार्मूला ऑफ टॉर्क। या तो फ्लक्स को रिवर्स कर दो, इसको सेम रहने दो तो टॉर्क रिवर्स हो जाएगा, या तो फ्लक्स को सेम रहने दो, आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दो तो आपका टॉर्क रिवर्स हो जाएगा नेगेटिव। अगर कहीं आपने दोनों को नेगेटिव कर दिया तो टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा। मींस आइदर रिवर्स फील्ड टर्मिनल और रिवर्स आर्मेचर टर्मिनल, डोंट रिवर्स बोथ टुगेदर, देन द डायरेक्शन विल नॉट बी सेम। तो या तो आर्मेचर टर्मिनल को, जैसे देखो मान लो ये कैसे ऐसे होता है वो थ्योरी में आप पढ़ोगे, बस मैं फाइनल रिजल्ट आपको बता रहा हूं। मान लीजिए डीसी शंट मोटर है, या तो आर्मेचर टर्मिनल को उल्टा कर दो अकेले, या तो फील्ड टर्मिनल को उल्टा कर दो अकेले, तो मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। अगर आपने इसको दोनों को एक साथ रिवर्स कर दिया तो मोटर के घूमने की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अगर हम सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो भी मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी, यानी अगर ये प्लस माइनस था, इसको हम माइनस प्लस कर दें, इसको हम क्या कर दें माइनस और प्लस, इसको हम माइनस और प्लस कर दें, तो अगर सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी आप बदल दोगे तो भी मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि तब इसमें और इसमें दोनों में जाने वाली करंट रिवर्स हो जाएगी। जब दोनों में जाने वाली करंट रिवर्स हो जाएगी और इसकी करंट रिवर्स हुई तो ये रिवर्स हो जाएगा, इसमें जाने वाली करंट रिवर्स हुई तो ये रिवर्स हो जाएगा। टॉर्क विल बी सेम। सो या तो फील्ड टर्मिनल को अकेले या तो आर्मेचर टर्मिनल को अकेले रिवर्स करो। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर सीरीज शंट एवरी मोटर, राइट। तो कैसे रिवर्स करेंगे हम, कैसे? अगर मोटर को रिवर्स करना नहीं आएगा चिंटू, तो प्यार के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा। नाउ सी, आई विल सी द ग्राफ फॉर द मोटर। सबसे पहले हम बात करते हैं शंट मोटर की। अगर हम शंट मोटर की बात करें सबसे पहले, इसके लिए ग्राफ होता है कौन सा, N वर्सेस IA। दूसरा ग्राफ होता है N वर्सेस T, और तीसरा ग्राफ होता है T वर्सेस IA। N वर्सेस IA ग्राफ कैसा होता है, जैसे जैसे IA बढ़े, आर्मेचर करंट बढ़े, ये थोड़ा सा घटता है, लाइक दिस। N वर्सेस T का ग्राफ वही होता है जो N वर्सेस IA का ग्राफ होता है। N वर्सेस T ग्राफ एंड N वर्सेस IA ग्राफ इज सेम फॉर ऑल द मोटर्स, आइदर इट इज सीरीज, शंट और कंपाउंड। N वर्सेस T ग्राफ इज आल्सो सेम लाइक दिस वन। T वर्सेस IA ग्राफ कैसा होता है शंट के लिए, T वर्सेस IA ग्राफ इज लाइक स्ट्रेट लाइन। T वर्सेस IA ग्राफ इज लाइक स्ट्रेट लाइन। T versus IA graph is like a straight line. This is linearly decreasing. This is linearly decreasing. This is for shunt motor. नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में क्या? अर्नव, नितेश, खुशाल, आसिफ, अंजलि, अर्नव, एवरीवन। ये ग्राफ मैंने बना दिया। ग्राफ कैसे बना है, इसकी क्वेश्चंस वगैरह आती हैं, वहां से ग्राफ बन जाएगा आपका। अब हम ग्राफ बनाते हैं सीरीज के लिए। ये तो ग्राफ था शंट के लिए। अब मैं ग्राफ अगर यही ग्राफ बनाऊं सीरीज के लिए तो कैसा बनेगा? सीरीज के लिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, बहुत ध्यान से देखना आप। सीरीज के लिए N वर्सेज IA का ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। N वर्सेज T का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है, N वर्सेज IA रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और T वर्सेज IA का ग्राफ पहले बनेगा पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन। पैराबोला मतलब यहाँ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर, और यहाँ पे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे सेचुरेशन आ चुका है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है। यहाँ पे सेचुरेशन नहीं है अभी, जैसे से IA बढ़ रही, phi भी बढ़ रहा था, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA।
खुशहाल सोनी का कहना है सीधा दिमाग में घुस रहा है सर। अर्नब का कहना है सर एन और टी का प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा एन और टी का ये आप जान लो, जो ग्राफ एन और वर्सेस टी का होगा वही ग्राफ एन वर्सेस आई ए का होगा। सेम द ग्राफ ऑफ एन वर्सेस आई ए इज सेम एज एन वर्सेस टी। तो आप एन वर्सेस आई ए का याद रखो, एन वर्सेस टी का वही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सुमित का कहना है सीरीज के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए मैथमेटिकली। एक्सप्लेन करेंगे फिर तो डीसी सीरीज मोटर पढ़ाने में 25 घंटे चला जाता है, और आज 1 घंटे में कोशिश है कि पूरा डीसी मशीन आपको रिवाइज करा दें। देखो टॉर्क का अगर इसका आप देखोगे तो टॉर्क का फार्मूला होता है ना K फाई इंटू आई ए। अगर हम ये मान के चलें कि करंट बढ़ रही है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। देखो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो अगर फाई इस पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई ए, तो आई ए इंटू आई ए क्या हो गया, टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ होगा। मगर आई ए बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा कुछ देर तक, एक सर्टेन करंट के बाद आई ए तो बढ़ेगा मगर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, आई ए तो बढ़ेगा मगर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन आया, कुछ देर तक करंट बढ़ेगी फ्लक्स बढ़ेगा, फिर करंट तो बढ़ेगी मगर फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज सैचुरेशन हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट के बाद जब आई ए बढ़ेगी तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो सैचुरेशन पे आने के बाद टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, यानी ग्राफ लीनियर हो जाता है। और जब सैचुरेशन नहीं होता है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर, यानी पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो ये सब पूछता है कि अगर हम सैचुरेशन को अवॉइड कर दें, सैचुरेशन को कंसीडर करें तो क्या ग्राफ होगा। यहां से यहां तक पैराबोलिक ग्राफ है, जब सैचुरेशन नहीं हुआ है, सैचुरेशन होने के बाद ग्राफ कैसा हो गया, लीनियर। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही है? अरे बोलो। तो एन वर्सेस आई ए का जो ग्राफ होगा सेम ग्राफ होता है एन वर्सेस टी का, हर मोटर के लिए। बाकी इक्वेशन से आप बना लोगे, एक एक दो लाइन की इक्वेशन है। तो ये ग्राफ हमने बना दिया सीरीज के लिए और शंट के लिए। अब आइए हम बनाते हैं सीरीज शंट के अलावा क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल के लिए। देखो अगर हम कंपाउंड मोटर की बात करें तो कंपाउंड मोटर में एक फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा आर्मेचर के पैरेलल में होता है और कुछ हिस्सा आर्मेचर के सीरीज में होता है कंपाउंड मोटर में। चक्रव्यूह का कहना वन ऑफ द गेट क्वेश्चन टू आज, ओके। धरनी का कहना है सर प्लीज डू इट फॉर सिंक्रोनस आल्सो। सुमित बोल रहे हैं सर यू आर ऑसम। देखो इधर जो हमारी कंपाउंड मोटर होती है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। ध्यान से देखो आप, जैसे मैंने कहा दिस इज योर आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में फील्ड वाइंडिंग का कुछ हिस्सा पैरेलल में है, कुछ हिस्सा सीरीज में है, लाइक दिस। दिस इज पैरेलल, दिस इज सीरीज, दिस इज कंपाउंड। मान लीजिए इसकी वजह से जो फ्लक्स आया दैट इज फाई एस एच, इसमें इसकी वजह से जो फ्लक्स आया दैट इज फाई एस ई। अब अगर सीरीज का फ्लक्स शंट के फ्लक्स को सपोर्ट करता है, मींस इफ टोटल फ्लक्स इज फाई इक्वल टू फाई एस एच प्लस फाई एस सी, देन द मोटर इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और अगर सीरीज का फ्लक्स शंट के फ्लक्स को अपोज करता है तो टोटल फ्लक्स जो आपका होगा इट विल बी फाई एस एच माइनस फाई एस सी एंड देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल का मतलब, अरे देखो ये वाइंडिंग का ओरिएंटेशन अगर मान लो मैंने ऐसे कहा, देखो ध्यान से, ऐसे 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 मान लो करंट ऐसे आ रही है सी, तो करंट कैसे आ रही है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं? और अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बदल दें, बस ऐसे, अब भी करंट ऐसे ही आ रही है, लेकिन अब देखो करंट कैसी आ गई, क्लॉकवाइज। यहां जो वाइंडिंग है हो सकता है ऐसी हो सकता है वाइंडिंग ऐसी हो, कुछ भी हो सकता है। करंट वाली सप्लाई आपने यहां पे दिया, करंट ऐसे आ रही है, करंट आ रही है, देखो कैसी करंट जा रही है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे वाइंडिंग का ओरिएंटेशन ऐसे है तो करंट कैसे आएगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो उससे फ्लक्स की जो भी डायरेक्शन आएगी
और यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है, तो उससे जो फ्लक्स की डायरेक्शन आएगी इसकी क्या होगी, अपोजिट, यानी फ्लक्स क्या हो गया, उल्टा। तो अगर मान लीजिए पहले वाइंडिंग ऐसी थी और ये और दोनों फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों सपोर्ट कर रहे थे एक दूसरे को, और अगर वाइंडिंग ऐसी हो गई तो ये फ्लक्स इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, मींस जिस दिशा में ये होगा उसकी उल्टी दिशा में ये होगा। तो डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव आपको समझ में आ गया। अब आइए हम ग्राफ बनाते हैं एक साथ तीनों का, शंट का, सीरीज का और क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल सबका। देखो सबसे पहला ग्राफ बनेगा एन वर्सेस आई ए का, इसमें सब होंगे एक साथ, चिंटू आइए इधर है और जाइए इधर है, आइए इधर है और जाइए इधर है। शंट का ग्राफ कैसा होगा, अरे बोलो कैसा, सर ऐसा, ठीक है चिंटू, ज्यादा डिक्रीज हो गया, थोड़ा कम डिक्रीज करो। शंट का ग्राफ हो गया ऐसा, राइट। शंट के बाद सीरीज का कैसा था, सीरीज का था ऐसा, ऐसी तो था, शंट का था ऐसा, सीरीज का था ऐसा। उसके बाद आपका था कंपाउंड, कंपाउंड में क्यूमुलेटिव था और एक डिफरेंशियल था। क्यूमुलेटिव का होगा कुछ ऐसा और डिफरेंशियल का होगा कुछ ऐसा। एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, दिस इज शंट, दिस इज सीरीज। खैर शंट और सीरीज का ज्यादा पूछता है, इट इज स्लाइटली डिक्रीजिंग। दिस इज सीरीज पैराबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज डिफरेंशियल, दिस इज क्यूमुलेटिव। गॉट इट और नॉट? नाउ सेकेंड ग्राफ इज फॉर एन वर्सेस टी। तो एन वर्सेस आई एंड एन वर्सेस टी ग्राफ विल बी सेम। जो एन वर्सेस आई का होगा सेम ग्राफ किसका होगा, एन वर्सेस टी का। एन वर्सेस आई और एन वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा। कैसा, बिल्कुल एक जैसा। सेकेंड इज टी वर्सेस आई, ये बताओगे आप लोग, ये बताएगा चिंटू। चिंटू बोलो क्या होगा, दिस इज टी एंड दिस इज आई, बताओ चिंटू कैसा होगा। चिंटू का सर सबसे पहले शंट का बना दो, चलो शंट का बना दिया, ये शंट का हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है शंट का। हाँ, सीरीज का क्या होता है, सीरीज का पहले पैराबोलिक फिर स्ट्रेट लाइन, ये सीरीज का हो गया। क्यूमुलेटिव का क्या होता है, क्यूमुलेटिव का होता है शंट प्लस सीरीज। तो शंट में सीरीज जोड़ दो, शंट की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए इस पर्टिकुलर करंट पे शंट इतना है, उसमें सीरीज इतना और जोड़ दो, शंट इतना है सीरीज और जोड़ दो, शंट में सीरीज जोड़ोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव का। ये किसका होगा, क्यूमुलेटिव। और डिफरेंशियल क्या होता है, शंट माइनस सीरीज। मान लो शंट पे ये है और इसमें से सीरीज घटा दो, सीरीज इतना घटा दो, तो इस पूरे में से इतना घटाओगे तो यहीं कहीं तो आएगा। या इस पे मान लीजिए आर्मेचर करंट ही है, शंट इतना है सीरीज घटा दो तो यहाँ कहीं आएगा, यानी किसके इसके बीच में कहीं आएगा। दिस इज योर डिफरेंशियल, दिस इज द ग्राफ। तो आपसे एग्जाम में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना के पूछ लेगा, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना के पूछ लेगा, ऐसे अभी बनाते हैं, ऐसे पूछ लेगा टी वर्सेस आईए का, ये टी है और ये आईए है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसे पूछ लेगा, ऐसे निकालेगा, ऐसा 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 टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लेगा, ठीक है। ऐसे लगेगा जैसे कोई पेड़ पौधा है, तो सबसे ऊपर वाला कौन, क्यूमुलेटिव, सबसे नीचे वाला कौन, सीरीज, ये वाला कौन, शंट, ये वाला कौन, डिफरेंशियल। हो गया, कौन ऊपर कौन नीचे कौन बीच में, उससे अंदाजा लगा लेना आप। नहीं आ रहा समझ में? निखिल बोल रहे हैं गजब एक्सप्लेनेशन। अरे बोलो। तो ये ग्राफ जो है कई बार बना के दे देगा, ऐसे 1 2 नंबर लिख देगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, पूछेगा 2 किसका है, 3 किसका है, 4 किसका है। तो बताना आप कि 2 जो है वो टी वर्सेज आईए का ग्राफ है, किसके लिए, शंट के लिए। 3 किसका ग्राफ है, टी वर्सेज आईए का डिफरेंशियल के लिए। 4 क्या है, टी वर्सेज आईए का सीरीज के लिए। तो ये ग्राफ है टी वर्सेज आईए का, ये ग्राफ है एन वर्सेज आईए का और एन वर्सेज टी का, स्पीड वर्सेज टॉर्क का। ये कहानी थी मोटर की, ये कहानी थी किसकी, मोटर के लिए। तो मोटर में आपने देखा, मोटर में कुछ और खास बातें मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी मोटर हमारे पास होती है जो स्टार्ट उल्टी दिशा में होती है, घूमती उल्टी दिशा में है। मींस अगर मोटर को आप देखोगे घूमते हुए और मोटर मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है, कैसे, ऐसे ऐसे, तो स्टार्ट ऐसे ऐसे नहीं हुई होगी, स्टार्ट उल्टी होती है, फिर रुकती है, फिर उल्टी घूमती है। तो ऐसी कौन सी मोटर है जो स्टार्ट किसी और दिशा में होती है और घूमती किसी और दिशा में है? नाम बताओ उस मोटर का।
कुछ देर तक इंक्रीज करेगा सुमित, कुछ देर तक इंक्रीज करेगा, बिल्कुल लीनियरली इंक्रीजिंग नहीं है वो। यानी ऐसी मोटर जो स्टार्ट ऐसे हो रही है, देखो ऐसे स्टार्ट हुई, फिर रुकती है थोड़ी देर के बाद, फिर ऐसे घूमती है और फिर घूमती रहती है। इसका कारण क्या है, जब आपको मशीन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अभी बस आपको नाम पता होना चाहिए। विच मोटर स्टार्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन, then the answer is differential compound motor. Differential compound motor is a motor which starts in reverse direction. Differential compound motor starts in reverse direction. पूछता है आपके एग्जाम में। कमेंट आ रहा, फ्लैट कंपाउंड क्या है? फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड, दैट इज ए जनरेटर। अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड या लेवल कंपाउंड। अब क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? आप बताएंगे डीसी मशीन, डीसी मोटर में स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? Why we need starter in DC motor, and there are how many type of starter in DC machine? अर्नव का कहना है टू रिड्यूस हाई करंट। होता यह है कि डीसी मोटर को जैसे आप स्विच ऑन करते हो, सप्लाई से बहुत ज्यादा करंट आती है स्टार्टिंग में, और वो करंट इतनी ज्यादा होती है कि उस ज्यादा करंट से ज्यादा IA स्क्वायर R लॉस होगा, और ज्यादा I स्क्वायर R लॉस होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगी, और ज्यादा हीट से बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं, आग लग सकती है, इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो जो ज्यादा करंट है उसका कारण क्या है, आप यहां से देख सकते हो। जैसे मैंने कहा, ये मान लीजिए हमारे पास डीसी मोटर है कोई सिंपल सी, मान लीजिए कोई वाइंडिंग वगैरह, दिस इज V, दिस इज EB, इसका रेजिस्टेंस है RSC, इसका रेजिस्टेंस है RA, दिस करंट इज IA। तो IA क्या होगा? IA होगा V माइनस EB अपॉन RA प्लस RSE। अब RA प्लस RSE को हमने नया नाम दे दिया R, इसको हमने नया नाम दे दिया क्या, R। अब देखो जरा, जब मोटर रुकी हुई है तो N क्या है, स्पीड 0, तो EB क्या होगा, EB होता है K phi N। तो अगर मोटर रुकी हुई है तो N 0 है तो EB 0 है। अगर EB 0 है, ये वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा, ये वैल्यू काफी ज्यादा, तो करंट काफी ज्यादा आएगी। और जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो EB बढ़ेगा, और EB बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू घटेगी, और ये पूरी वैल्यू घटेगी तो IA घटेगी। मींस करंट केवल शुरू में ज्यादा होती है, हमेशा नहीं। तो जैसे आपने स्विच ऑन किया, मोटर स्टार्ट हो रही है, उसी वक्त स्टार्टिंग के वक्त करंट बहुत ज्यादा होती है, एंड ड्यू टू दैट हाई करंट मोर I स्क्वायर R लॉस, मोर I स्क्वायर R लॉस, सो ड्यू टू दैट लॉस आपका इंसुलेशन वगैरह डैमेज हो सकता है। तो स्टार्टिंग करंट जो है उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। आता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, मेनली ये 4 स्टार्टर आपके पास हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर का हम इस्तेमाल मेनली सीरीज मोटर के लिए करते हैं, 3 पॉइंट का स्टार्टर हम मेनली शंट के लिए करते हैं, और 4 का इस्तेमाल हम कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। 2 पॉइंट सीरीज, 3 पॉइंट शंट, 4 पॉइंट कंपाउंड। लेकिन 3 पॉइंट का शंट के लिए तो मेनली करते हैं, कंपाउंड के लिए भी कर सकते हैं। 4 पॉइंट का कंपाउंड के लिए तो करते हैं, शंट के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर कभी ये आए कि 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज कहां कहां करते हैं, तो कर तो दोनों में सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन दे रखा है शंट और कंपाउंड बोथ, तो आप वही टिक करोगे। और अगर केवल एक टिक करना है, शंट भी है, कंपाउंड भी है, सीरीज भी है, तो शंट टिक करोगे आप। ऐसे 4 पॉइंट आ गया कि कंपाउंड या शंट में से कोई एक टिक करना है तो कंपाउंड टिक करोगे, और अगर दे रखा है कि दोनों, तो आप फिर दोनों टिक कर सकते हो। तो मेनली 2 पॉइंट स्टार्टर इन सीरीज, 3 पॉइंट स्टार्टर इन शंट, एंड 4 पॉइंट स्टार्टर इन कंपाउंड मोटर। बोलो हाँ या ना।
मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, तुम्हें क्या हो गया है। अब बात करते हैं हाउ वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मशीन। स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम डीसी मशीन के केस में, हाउ? बोलो हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। चिंटू कह रहा है सर मेरी बबली को कोरोना हो गया है, चाह के भी पास नहीं जा सकता मैं। पास चले गए तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। चिंटू देखो इधर, आइए 777 भी आज हमारे साथ हैं, खुशहाल सोनी, विवेक पांडे, न्यूज गुगली, नितिन नेगी। आजकल आप लोगों से मुलाकात रेगुलर हो नहीं पाती है तो मेरा दिल नहीं लगता। अर्नब का कहना सर एक क्लास रोज लीजिए। चलिए देखिए स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे। स्पीड कंट्रोल मैं आपको बता दूं, पहला मेथड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आर्मेचर कंट्रोल मेथड 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। नॉर्मली शंट मोटर में यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपकी मोटर है, मान लीजिए शंट मोटर है लाइक दिस। हम क्या करते हैं इसमें, यहां जो आर्मेचर है इसके सीरीज में रजिस्टर लगा देते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है पता है, यहां पे जो स्पीड होती है वो घट जाती है, स्पीड घट जाती है, यानी n इज लेस देन nb, यानी जो स्पीड होती है वो बेस स्पीड से कम मिलती है। इसमें जो टॉर्क मिलता है वो टॉर्क क्या मिलता है, कांस्टेंट टॉर्क मिलता है, ठीक है। और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा स्पीड घटेगी। इस मेथड में स्पीड जो होती है नॉर्मल स्पीड से कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। खुशहाल सोनी का कहना हाँ सर याद आपकी बहुत आती है, दूर सही मजबूर सही याद तुम्हारी आती है, दूर सही मजबूर सही याद तुम्हारी आती है, तुम नाम वहां से लेते हो आवाज यहां तक आती है। तो आप एक बार जब सोचते हो ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाता है। देखो स्पीड इज लेस देन बेस स्पीड का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई मोटर है, हमने कोई इंतजाम नहीं किया है, ना आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगाया ना फील्ड में रेजिस्टेंस लगाया, बिना किसी अरेंजमेंट को जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं बेस स्पीड। मान लीजिए बेस स्पीड है 1000 आरपीएम, सपोज बेस स्पीड 1000 आरपीएम। अगर हम आर्मेचर में रेजिस्टेंस लगा दे सीरीज में तो आप स्पीड को घटा सकते हो, 1000 से बढ़ा नहीं सकते। आप स्पीड को घटा सकते हो, 1000 से बढ़ा नहीं सकते। सो स्पीड इज कंट्रोल्ड बिलो द बेस स्पीड, यानी 1000 से बढ़ाना हो, 1100 करना हो, 1200 करना हो तो नहीं होगा, कम हो जाएगी 1000 से, 800 700 600 करना हो, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से। स्पीड कंट्रोल का मतलब ये होता है, स्पीड कंट्रोल का मतलब ये होता है अपनी जरूरत के हिसाब से स्पीड को घटाना है बढ़ाना। हमें लग रहा है नहीं हमारी आवश्यकता है स्पीड बढ़ाना तो हमने बढ़ा दिया कुछ चेंज करके, या हमें लगा नहीं हमारी जरूरत है स्पीड को घटाना तो हमने घटा दिया कुछ चेंज करके। अपने आप जो स्पीड में परिवर्तन होता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन लोड दैट इज कॉल्ड स्पीड रेगुलेशन, एंड द इंटेंशनल चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड स्पीड कंट्रोल। सो अगर स्पीड 1000 आरपीएम, मुझे लग रहा है कि जिस झूले पे बबली घूम रही है उस झूले की स्पीड को कम करना है क्योंकि बबली को चक्कर आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आर्मेचर सर्किट में जाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज में, स्पीड घट जाएगी। फिर बबली ने कहा स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड बढ़ाने के लिए फिर आपको कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। एक चीज और, इस मेथड में आपका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। दूसरा मेथड आपका होता है फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड फ्लक्स मेथड। फील्ड फ्लक्स मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड या फील्ड वीकनिंग मेथड, हम इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर्मेचर में नहीं। आर्मेचर को छोड़ दिया,
छोड़ दिया आर्मेचर को, फील्ड वाइंडिंग ये है, फील्ड वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, लो दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब फील्ड वाइंडिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दोगे तो क्या होगा, जाने वाली करंट इसमें घटेगी, करंट घटेगी तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घटेगा, और फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घटेगा तो आपको पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाती है। यानी अगर मोटर नॉर्मली 1000 आरपीएम पे रन कर रही हो, इसकी बेस स्पीड है, बिना किसी तामझाम के, ना यहाँ रजिस्टर लगाया ना यहाँ रजिस्टर लगाया, तब जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड बेस स्पीड। और अगर आप फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो स्पीड 1000 से बढ़ेगी 1100, 1200, 1300। तो अगर पब्लिक कहती है सर स्पीड बढ़ाओ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना होगा फील्ड वाइंडिंग में। अगर कहती है कि स्पीड को घटाओ तो मुझे आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाना होगा। सो स्पीड बढ़ानी है घटानी है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टर यहां लगाएंगे या यहां लगाएंगे। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को देखें तो कांस्टेंट टॉर्क होता है, और अगर इस मेथड में देखें तो पावर कांस्टेंट होती है। दिस इज ए कांस्टेंट पावर ड्राइव, दिस इज ए कांस्टेंट पावर ड्राइव। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, देखो पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड होती है नहीं होती है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इस मेथड में टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे पी और एन के बीच का, पावर और स्पीड के बीच का, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पी और एन के बीच का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल लीनियर। और यहां पे आप देखो जरा, यहां पे पावर कांस्टेंट होती है तो P इज इक्वल टू टी इंटू एन, यहां से आप T लिखोगे तो क्या होगा P अपान एन। यहां पे P कांस्टेंट है, पावर इज कांस्टेंट हियर, सो व्हाट विल हैपन, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी टॉर्क स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन फील्ड कंट्रोल मेथड द हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट विच स्पीड, हायर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट लोअर स्पीड एंड लोअर टॉर्क इज ऑब्टेन्ड एट हायर स्पीड। अगर टॉर्क ज्यादा चाहिए तो स्पीड कम रखो, टॉर्क ज्यादा कम चाहिए तो स्पीड ज्यादा रखो। ये और ये इनवर्स रिलेशन में होती है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ यहाँ पे टी और एन का कैसा होगा, ऐसा, दिस इज टी और दिस इज एन। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही है? दिस इज कांस्टेंट पावर ड्राइव, दिस इज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अरे ऐसे देखो चिंटू कह रहा है सर क्या पढ़ा रहे हो आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इधर देखो सी, इधर ही टॉर्क है इधर ही पावर है, और यहां पे है स्पीड मान लो, ठीक है, ये है मान लीजिए एन इज इक्वल टू एन बी, बेस स्पीड है। अगर आपकी स्पीड बेस स्पीड से कम है तो कौन सा मेथड होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अगर स्पीड यहां से यहां तक बेस स्पीड से ज्यादा होती है, एन इज ग्रेटर देन एन बी, एन इज ग्रेटर देन एन बी, तो ये कौन सा मेथड होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल क्यों रखा गया है, फील्ड फ्लक्स कम होता है, फील्ड वीकनिंग मेथड इसलिए बोलते हैं, फील्ड फ्लक्स वीक होता है, राइट। अब यहां से देखो टी आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या कांस्टेंट होता है, टॉर्क, तो यहां से यहां तक टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पे फील्ड कंट्रोल मेथड में टॉर्क क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड में टॉर्क और स्पीड का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ऐसे ग्राफ होगा, यहां से यहां तक टॉर्क क्या है, कांस्टेंट आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में, लेकिन जैसे बेस स्पीड से ज्यादा पहुंचे, कौन सा मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, ये हो गया टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। यहां से यहां तक पावर का क्या रिलेशन है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कुछ ऐसी कहानी होगी, लीनियर रिलेशन है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में। फील्ड कंट्रोल मेथड में आप जैसे जाओगे तो क्या रिलेशन है, पी और एन का, पी और एन का क्या रिलेशन है, पी इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में टी का एन के साथ या पी का एन के साथ क्या रिलेशन है, तो टी तो कांस्टेंट होता है इस रेंज में, इस रेंज में टी और पी का क्या रिलेशन स्पीड के साथ, तो टी का इनवर्स रिलेशन है, पी कांस्टेंट होता है। तो एक मेथड ऐसा है जिसमें स्पीड घटेगी बेस स्पीड से, और एक मेथड ऐसा है जिसमें स्पीड बढ़ेगी बेस स्पीड से। बात आ रही समझ में, एक कांस्टेंट टॉर्क वाला मेथड है और एक कांस्टेंट पावर वाला मेथड। दिस इज कांस्टेंट टॉर्क, दिस इज कांस्टेंट पावर। लेकिन इस मेथड की खामी क्या है कि या तो स्पीड बढ़ाई जा सकती है या तो स्पीड घटाई जा सकती है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्पीड केवल घटा सकता है, आर्मेचर फील्ड कंट्रोल मेथड स्पीड को बढ़ा सकता है। क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे स्पीड बढ़ाई और घटाई एक साथ जा सके, तो वो मेथड है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड या वार्ड लियोनार्ड मेथड। वार्ड लियोनार्ड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही मेथड में यू कैन इंक्रीज द स्पीड और यू कैन डिक्रीज द स्पीड। स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है घटाई भी जा सकती है। मींस अगर बेस स्पीड 1000 आरपीएम हम ले लें तो 1000 आरपीएम से बढ़ सकती है,
1000 आरपीएम से बढ़ सकती है 1100, 1200, 1300, 1400। 1000 आरपीएम से घट भी सकती है 900, 800, 700, 600। सो द स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रॉम द बेस स्पीड। वार्ड लियोनार्ड मेथड एक बहुत ही सेंसिटिव और वाइड कंट्रोल मेथड। वाइड मींस 1000 से बढ़ना भी, 1000 से घटना भी, तो काफी वाइड रेंज आपको मिल गई। वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल इन वार्ड लियोनार्ड मेथड। दिस इज ए वेरी सेंसिटिव मेथड। दिस इज ए वेरी सेंसिटिव मेथड। इन दिस मेथड द स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल इन द रिवर्स डायरेक्शन आल्सो। यानी मोटर अगर इधर घूम रही है ऐसे ऐसे, तो जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में तो स्पीड को कम ज्यादा किया ही जा सकता है। इसको उल्टा घुमा दो, उल्टा घुमा करके भी स्पीड को कम ज्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में। तो जिधर मोटर घूम रही है उस दिशा में भी स्पीड को कम ज्यादा करना, या उसको उल्टी घुमा के भी स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है। वार्ड लियोनार्ड मेथड है तो अच्छा बट महंगा होता है, क्योंकि इसमें मोटर, जनरेटर, सेट वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जो चीजें अच्छी होती हैं थोड़ी सी महंगी तो होती हैं, होती है नहीं? यस प्रताप, वार्ड। चलो ये कहानी आई समझ में? आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब थोड़ा सा कहानी देखते हैं किसकी, जनरेटर की। जनरेटर की कहानी देखते हैं। जनरेटर में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि अगर डीसी संट जनरेटर है, बहुत ध्यान से सुनो आप, डीसी संट जनरेटर है और नो लोड पे है, बहुत ध्यान से सुनो आप। जनरेटर की कहानी थोड़ी सी बता रहे हैं आपको। डीसी संट जनरेटर है आपके पास, क्या है? डीसी संट जनरेटर है सर। अच्छा, ऐसा है। एट नो लोड। नो लोड मतलब यहां पे कोई लोड नहीं लगा है, कोई लोड नहीं लगा है। अगर लोड लगा होता तो क्या होता? अगर कोई लोड लगा होता, इलेक्ट्रिकल लोड मींस जिसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, आप क्या करते? इसके पास थोड़ा सा फ्लक्स होता, वो फ्लक्स इससे पास होता, इसको मैकेनिकल इनपुट देके हम घुमाते। जब इसको घुमाएंगे यहां से फ्लक्स पास होगा तो इसमें ईएमएफ आएगा। ईएमएफ आ गया मान लीजिए ईए, और उस ईएमएफ से कुछ करंट आएगी, मान लीजिए करंट आ गई आईए, कुछ करंट इधर आएगी और कुछ करंट इधर चली जाएगी। ठीक है, हमने कहा यहाँ लोड नहीं लगा है, मान लीजिए नो लोड की कहानी है। नो लोड तो क्या होगा? तो जो करंट आएगी करंट ऐसे ऐसे ही आएगी। ठीक है, मेरा सवाल यह है कि डीसी संट जनरेटर नो लोड पे रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पा रहा है। डीसी जनरेटर को जितना वोल्टेज पैदा करना चाहिए था, डीसी जनरेटर को जितना वोल्टेज पैदा करना चाहिए था उतना वोल्टेज जनरेटर नहीं पैदा कर पा रहा। रेटेड वोल्टेज मान लीजिए मैंने कहा 240 वोल्ट के लिए बनाया गया जनरेटर को, उतना रेटेड वोल्टेज पैदा करना चाहिए था, नहीं पैदा कर पा रहा है। व्हाट मे बी द रीजन? What may be the reason that your generator is not producing the rated voltage? पहली कहानी, अरे कैसे होगा? पहली कहानी, रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है आपके पास, रेजिडुअल फ्लक्स इज एब्सेंट। अगर हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं है तो जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा करेगा। क्यों? देखो होता यह है कि इसके पास हमें मान के चलते हैं कि थोड़ा सा फ्लक्स तो है इसके पास, बहुत थोड़ा सा फ्लक्स है पहले से, रेजिडुअल फ्लक्स। वो रेजिडुअल फ्लक्स, थोड़ा सा फ्लक्स यहां पास हुआ, थोड़ा सा ही फ्लक्स पास हुआ, इसको हमने रेटेड स्पीड से घुमाया तो इसके पास ईएमएफ आ गया, ईएमएफ से करंट आ गई, वो करंट इधर से आएगी, और जब करंट आएगी तो करंट से इसमें फ्लक्स और बढ़ेगा। अब जो फ्लक्स बढ़ा और पहले से रेजिडुअल फ्लक्स दोनों जुड़ गए, अब बढ़ करके फ्लक्स पास होगा, ज्यादा फ्लक्स पास होगा तो ज्यादा ईएमएफ तो ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट आएगी तो और ज्यादा फ्लक्स। ये प्रोसेस चलता रहता है और एक समय बाद जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा कर देता है। मगर अगर जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा कर रहा है तो एक कारण हो सकता है कि रेजिडुअल फ्लक्स इसके पास है ही नहीं। जब फ्लक्स है ही नहीं तो इसको कितना भी घुमा लो, सारी दुनिया की ताकत लगा के घुमा लो, आप रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर सकते। रेजिडुअल फ्लक्स इज एब्सेंट। नहीं आ रही बात समझ में? अगर रेजिडुअल फ्लक्स एब्सेंट है तो क्या करेंगे? तो फिर फील्ड वाइंडिंग को कुछ समय के लिए डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, कुछ समय के लिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे ताकि उसमें करंट चली जाए, और करंट चली जाएगी तो उसके पास फ्लक्स भी आ जाएगा। फिर डीसी सप्लाई को हटा दो, इसको बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। व्हेन ए स्मॉल वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग फॉर ए स्मॉल टाइम, दैट इज कॉल्ड फील्ड फ्लैशिंग, एंड इट इज डन व्हेन देयर इज नो रेजिडुअल फ्लक्स इन द डीसी जनरेटर। फील्ड फ्लैशिंग का मतलब थोड़ा सा वोल्टेज दे दो तो करंट आएगी, करंट आएगी तो फ्लक्स आएगा, फिर सप्लाई हटा लो। सप्लाई हटाने के बाद भी अगर मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्स बचा रह जाता है ना, वही तो होता है रेजिडुअल फ्लक्स।
यही तो कारण है कि आप कोशिश ये करते हो कि जो पोल्स हों आपके वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के हों, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के, ताकि उसके पास रेजिडुअल फ्लक्स हो। ट्रांसफार्मर की कोर तो हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं, मगर डीसी एप्लीकेशन में हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। इसी ही कारण है कि रेजिडुअल फ्लक्स ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा आपका। ठीक है, तो पहला कारण तो हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि हम करें कहा कि रेजिडुअल फ्लक्स है, मैं इसको घुमा रहा हूं, रेजिडुअल फ्लक्स है, फिर भी ये रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पा रहा है। क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है बताओ। फील्ड कनेक्शन इज रॉन्ग, फील्ड कनेक्शन इज रॉन्ग, फील्ड कनेक्शन इज रॉन्ग मतलब थोड़ा सा फ्लक्स है इसके पास, मान लो 2 वेबर, वो थोड़ा सा फ्लक्स पास हुआ, यहां पे थोड़ा सा ईएमएफ आया, थोड़ी सी करंट आई, वो करंट इधर आ रही है। अब इस करंट के आने से इसमें फ्लक्स तो आया, मगर वो फ्लक्स पहले वाला जो फ्लक्स है मान लीजिए इस दिशा में है, उसके उल्टी दिशा में आ गया। मान लीजिए आपने जिस फील्ड वाइंडिंग को मान लीजिए इसको इससे कनेक्ट करना था और इसको इससे कनेक्ट करना था, हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया। देखो अभी मान लो हम इसको इससे करते, इसको इससे करते, तो करंट कैसे आती, ऐसे आती मान लो, तो फ्लक्स मान लीजिए इधर आता और ये फ्लक्स आता रेजिडुअल फ्लक्स को सपोर्ट करता मान लो। अगर हमने उल्टा कनेक्शन कर दिया, ये कनेक्शन यहां ना करके यहां कर दिया और ये कनेक्शन यहां ना करके यहां कर दिया, तो अब क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग में करंट तो है मगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब करंट अपोजिट हो गई तो जो फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा, अपोजिट। यानी पहले का जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो मान लो इधर आ गया, अब इसमें जो फ्लक्स आ गया वो इधर आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रेजिडुअल फ्लक्स बचा था वो खत्म हो गया। तो अगर रेजिडुअल फ्लक्स हट गया तो अब तो फिर जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा करे तो उसके लिए फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन भी प्रॉपर होना चाहिए। यानी अगर ये प्रॉपर कनेक्शन है तब तो ठीक, अगर इसके उल्टा कनेक्शन आपने फील्ड वाइंडिंग का कर रखा है तो जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर पाएगा। दूसरा अगला कारण क्या हो सकता है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जिसको क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं उससे ज्यादा है तो भी, पहला दूसरा था फील्ड कनेक्शंस आर रॉन्ग, तीसरा है फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस होता है, फील्ड वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का, फील्ड वाइंडिंग का। अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ के एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से ज्यादा हो गया और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, तब जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा कर पाएगा। क्यों, अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ वोल्टेज तो आएगा मगर इसमें जाने वाली करंट नहीं ज्यादा हो पाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो इसमें करंट क्या होगी, करंट क्या होती, करंट आई इज V अपॉन R, तो इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस वही तो करंट को गवर्न करेगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो इसमें जाने वाली करंट बहुत कम होगी और उस कम करंट से रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा कर पाएगा जनरेटर। तो आप अगर रेटेड वोल्टेज पैदा करना चाहते हो तो आपके फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दैट इज क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस उससे कम होना चाहिए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस देन जनरेटर विल नॉट प्रोड्यूस रेटेड वोल्टेज। ये सब पढ़ा है आपने। और नेक्स्ट क्या है, जिस स्पीड से घुमाते हो, अगर आप किसी स्पीड से घुमा रहे हो, एक तो इसके पास फ्लक्स थोड़ा सा है रेजिडुअल फ्लक्स और स्पीड भी बहुत थोड़ी सी है, घुमा रहे हो धीरे धीरे, तो जो ईएमएफ आएगा वो आएगा क्या, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज आएगा, ये भी कम बहुत थोड़ा सा वोल्टेज थोड़ी सी करंट से फिर फ्लक्स बढ़ा, ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा कर ले तो अगर फ्लक्स कम भी है, रेजिडुअल फ्लक्स ही है, तो स्पीड तो कम से कम ज्यादा रखो, इसके घुमाने की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। यानी जिस स्पीड से जनरेटर को आप घुमा रहे हो अगर वो स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम है तो भी जनरेटर रेटेड वोल्टेज नहीं पैदा करेगा, और उस पर्टिकुलर स्पीड को बोलते हैं क्या, उस पर्टिकुलर स्पीड को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीड को बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो अगर जनरेटर के घुमाने की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम है तो भी जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। तो ये कहानी थी किसकी, ये कहानी किसकी थी कि जनरेटर रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि जनरेटर के पास, फील्ड वाइंडिंग के पास रेजिडुअल फ्लक्स नहीं है, फील्ड कनेक्शन गलत है, या फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से ज्यादा है, या दूसरा फील्ड वाइंड जो जनरेटर के रोटर के घुमाने की स्पीड है वो स्पीड कम है क्रिटिकल स्पीड से।
ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूं, ग्राफ बनाने से अच्छा है शॉर्ट में। मैं अगर आपसे पूछूं, आपके पास कई सारे जनरेटर होते हैं, डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, और उसके बाद अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है। एलोन मस्क का कहना है सर इसे ओसीसी से समझाओ ना। देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ग्राफ आप देखोगे फिर आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका टर्मिनल करंट है, मीन्स लोड करंट, और ये लोड के क्रॉस वोल्टेज। अगर आप ग्राफ देखोगे तो मान लो एक पर्टिकुलर करंट पे कुछ वोल्टेज है आपका। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो लेवल का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, यानी IL जब जीरो है, भाई IL बराबर होता है लगभग IA के। अगर ये जीरो है तो जो वोल्टेज है नो लोड पे वही वोल्टेज है फुल लोड पे, ये है लेवल, ठीक है। इसके नीचे आता है अंडर। अंडर में क्या है, जब IL या IA जीरो है तब जो वोल्टेज है, और ये फुल लोड मान लीजिए करंट है आपकी, तब जो आपका वोल्टेज है, तो नो लोड से कम है फुल लोड। लेवल अंडर, ये क्या है आपका ओवर, राइट। ये है आपका संट, ठीक है। और ये है आपका कुछ इस तरीके से सीरीज। संट के बाद आपका ये है क्यूमुलेटिव, और सबसे तेजी के साथ डिक्रीज होता है डिफरेंशियल। अब आप बस इतना जानो, ग्राफ कैसे आया क्या नहीं आया वो आप पढ़ोगे। मेरा जो मकसद अभी बताना है, बस थोड़ी सी चीज मैं बताऊंगा, उससे आप याद रख ले जाओगे। क्या क्वेश्चन आता है कि कहां पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है और कहां पे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। तो आप बताओ वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, यही तो होता है। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, दैट इज योर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अगर कहीं पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, अगर कहीं पे वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा है। ध्यान से जरा सुनना, नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज से ज्यादा है। अगर मैं कहूं कहीं पे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव का मतलब ये ज्यादा और ये कम है, ये ज्यादा और ये कम है, मींस नो लोड वोल्टेज कम है और फुल लोड वोल्टेज ज्यादा है। और अगर मैं कहूं कहीं पे वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, नो लोड वोल्टेज इज इक्वल टू फुल लोड वोल्टेज। ये कहानी होगी या नहीं होगी, अरे बोलो हाँ या ना, चिंटू थकना नहीं है। If I am at full load, how you could be at no load? थक के भागे जा रहे हो, बैठ के मोबाइल फोन में देखना है, उसी में चिंटू थक जा रहा है। इतना थकोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, इतना थकोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। रुकना नहीं हमें अब कुछ काम करना है, रुकना नहीं हमें अब कुछ काम करना है, इस जमी से उस आसमां तक नाम करना है। कह दो चांद सितारों से कि निकला न करें वो,
रोशनी तो अब तुम्हें करनी है, उन्हें तो अब आराम करना है। अर्णव बोल रहे किशोर कुमार का एक गाना हो जाए सर। खुशहाल सोनी, आप लोग थक जाते हो बहुत जल्दी। एक दिन मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, पता है क्या? लाइव वीडियो। किस चीज की पता है? गेस करो। निखिल का कहना है बेस्ट शायर अवार्ड गो टू राजकुमार सर। एक दिन मैं वीडियोज बनाने वाला हूं, पता है किस चीज की? गेस करो कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 777 का कहना है सर शायरी। शायरी तो बहुत सुनाई आप लोगों को। गेट ट्यूटोरियल्स का कहना है सर डिजिटल के क्वेश्चन सीरीज रिज्यूम कीजिए। हाँ 3-4 दिन ही क्वेश्चन हो पाए थे, एक्चुअली मई महीने का उस शेड्यूल था, जून में क्लास स्टार्ट हुई नहीं क्रिएटिक्स पे। खुशहाल सोनी का कहना है 12 आवर नॉन स्टॉप क्लास। चलिए एक शायरी सुना ही देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने सुनी होगी लेकिन फिर सुनाते हैं आज। राहत इंदौरी की शायरी है, आपने सुनी होगी लेकिन फिर सुनाते हैं एक बार आज। आर यू रेडी? तैयार हो आप? गणेश का कहना है सर स्पीक इन इंग्लिश। शायरी तो मैं हिंदी में ही सुनाऊंगा, उसको इंग्लिश में सुनाना संभव नहीं है। कि उसकी कत्थई आंखों में है, किसकी? चलो छोड़ो दूसरी सुनाते हैं। नहीं दो सुनाएंगे, एक अभी एक 10 मिनट बाद। एक अभी सुनाएंगे और एक 10 मिनट बाद। पहले कोई और सुनाते हैं, मार्कर रख दें। दो सुनाएंगे, एक अभी और एक थोड़ी देर बाद। कि गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, गुरूर मीन्स घमंड, ईगो, प्राइड। गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो, इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। गुरूर, चिंटू कह रहा है बबली के लिए, जाओ कह दो उससे कि गुरूर उस पे बहुत सजता है मगर कह दो इसी में उसका भला है गुरूर कम कर दे। यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। यहां लिबास मीन्स क्लोथ, यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे ग्लास बढ़ा दे, शराब कम कर दे। उदय भास्कर का गाना है सर इंग्लिश। इंग्लिश में मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, इसकी फीलिंग्स के साथ बिल्कुल अत्याचार हो जाएगा। तो ग्लास बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हो उतना अच्छा। अंदर क्या है, देसी भी हो अंदर तो चलेगा, लेकिन ग्लास बढ़िया और शानदार होना चाहिए। लोग ग्लास ही देखते हैं, अंदर क्या है कोई नहीं देखता। नो, नो वन। या देखते हो आप? प्रबीर हल्दर, खुशहाल सोनी, अंदर की सुंदरता से किसी को क्या लेना। यहां तो एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हैं वाली कहावत है।
एक चेहरे पे कई चेहरे लगा के बैठे हैं, जहां पे जिस चेहरे की जरूरत पड़ती है वो मुखौटा लगा लेते हैं। यही दुनिया है। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था मुझे लगता था हर इंसान मेरे जैसा ही है या हर इंसान दिल का अच्छा होता है, मगर आगे बढ़ने के बाद पता चला, आप भी सीखोगे या आपने सीखा होगा कि इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और कुछ चीज़ें आप जब खुद सीखते हो तभी उसका मतलब समझ में आता है। एक कहावत है ना कि द नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अगर कोई चीज़ मैं आपसे 10 बार कहूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी, 11वीं बार आपके साथ हो गई वो चीज़ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फरेबी, जालसाज, फ्रॉड, बहुत सारे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आप इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में योगदान दोगे, एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दोगे, एक बेहतर सोसाइटी तैयार करने में आप जरूर बढ़ चढ़ के भागीदारी लोगे, ये मेरा विश्वास है। अर्नब बोल रहे चेहरा है या चांद? चलो हाँ, बात मैं कर रहा था, ये बहुत काम की चीज है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगर मैं कहूं वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब दिस इज हाई दिस इज लो। अगर मैं कहूं वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव, इट मींस दिस इज हाई दिस इज लो। इफ वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो देन दिस इज इक्वल टू दिस। अब याद कैसे रहोगे आप? याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर में और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ओवर में और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन होता है नेगेटिव। लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन होता है जीरो, और बाकी जितने बच गए उन सब में वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या? पॉजिटिव। जितने बच गए रेस्ट, वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव। गर्वित बोलो, इफ ओवर और सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, देखो जरा, सीरीज में दिस इज नो लोड वोल्टेज एंड दिस इज फुल लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज से ज्यादा है फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज हाई, नो लोड वोल्टेज लो, दैट्स वाई नेगेटिव। सीरीज में ओवर में दिस इज नो लोड वोल्टेज एंड दिस इज फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज इज हाई देन नो लोड वोल्टेज, दैट्स वाई वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। लेवल में नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज इज इक्वल, दैट्स वाई वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो। एक्सेप्ट दीज थ्री इन एवरी डीसी जनरेटर वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव। देखो चाहे अंडर हो, चाहे अंडर में देखो दिस इज नो लोड दिस इज फुल लोड, फुल लोड कम है नो लोड ज्यादा है, दिस इज नो लोड दिस इज फुल लोड, दिस इज नो लोड दिस इज फुल लोड। तो बाकी जितने बच्चे आपके, चाहे वो संट हो, चाहे वो आपका क्यूमुलेटिव हो, चाहे आपका अंडर कंपाउंड हो, उन सब में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो याद कहां रखोगे? ओ एन एस, बस। O मीन्स ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर, S मीन्स सीरीज कंपाउंड डीसी जनरेटर, यहां वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। लेवल में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? जीरो होता है, बाकी जितने बच गए सब में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है। फिर क्वेश्चन आता है किस जनरेटर में नो लोड वोल्टेज ज्यादा होता है, कहां फुल लोड ज्यादा होता है, कहां दोनों बराबर होते हैं? तो अरे जहां वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है, जहां वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव है इसका मतलब नो लोड ज्यादा है फुल लोड से, और जहां वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये ज्यादा ये कम है। तो वोल्टेज रेगुलेशन आप अगर याद रख सकते हो किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव है, तो वहां से आप बड़े आराम से याद रख लोगे, वेयर नो लोड इज हाई वोल्टेज, वेयर फुल लोड वोल्टेज इज हाई। तो याद रखो केवल O और S, ओवर कंपाउंड और सीरीज का। और इसमें भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका होता है? वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन, वर्स्ट, सबसे खराब। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी जीरो, बट ज्यादा अगर वोल्टेज रेगुलेशन है दैट इज नॉट गुड। सबसे ज्यादा किसका है? वर्स्ट, सीरीज का। सीरीज का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब होता है, लगभग कितना होता है? 90% के आसपास, और वो भी माइनस में, माइनस 90% के आसपास सीरीज का। माइनस में तो होता ही है और 90% के आसपास होता है, मींस वेरी हाई, वर्स्ट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया विच आर द फॉलोइंग हैज वर्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन। वर्स्ट मींस मैक्सिमम, वो चाहे नेगेटिव में मैक्सिमम हो चाहे पॉजिटिव में मैक्सिमम हो, ठीक है।
ये एसएससी जेईई में भी 1-2 साल पहले पूछा गया था, तो याद रहेगा आपको। तो याद केवल ये रखो ONS, यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये ज्यादा ये कम, बाकी हर जगह लेवल में वोल्टेज रेगुलेशन 0, यानी ये बराबर, बाकी हर जगह वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, मींस ये ज्यादा और ये कम। अब आइए बात करते हैं किसकी, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में कुछ डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में 4-5 डिफरेंस है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल जैकपॉट पॉइंट है वो। लैप और वेव में अंतर, पहला, दिस इज लैप वाइंडिंग, दिस इज वेव वाइंडिंग। क्या क्या अंतर है? पहला, लैप वाइंडिंग में द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, बट हियर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 2। हियर इट इज यूज्ड फॉर हाई करंट, for high current lap winding is used, and this is used for high voltage, for high voltage। कई बार एग्जाम में आता है कि ऐसा 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 है और हम हाई वोल्टेज पैदा करना चाहते हैं, तो कौन सी वाइंडिंग होनी चाहिए? हाई वोल्टेज के लिए वेब, और अगर हाई करंट पैदा करना चाहते हैं तो लैप। याद कैसे रखेंगे सर? अरे वेब में वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? WAVE, V मींस वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एंड दिस इज हाई करंट। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज नंबर ऑफ पोल, A is equal to 2। number of brushes is always equal to number of pole। suppose there is a 4 pole lap connected DC machine, so number of brushes will be 4, and in wave winding the number of brushes is always equal to 2। number of brushes are always equal to 2, number of brushes pole के बराबर, number of brushes 2। here equalizer ring is used, equalizer ring is used, and what is the purpose? for the uniform distribution of voltage or to stop the flow of circulating current। equalizer ring is used to stop the flow of circulating current or for the uniform distribution of voltage। here no equalizer ring is used, no equalizer ring is used। here no need of dummy coil, no need of dummy coil, but here dummy coil is used, here dummy coil is used for the mechanical balancing। डमी कॉइल में कोई करंट वगैरह ना तो देते हैं ना तो वोल्टेज इंड्यूस होता है, वो केवल मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए होती है बस। किसके लिए होती है? मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए। सो क्वेश्चन आता है डमी कॉइल कहां यूज करते हैं? लैप में, वेव में, कहीं नहीं, या दोनों में? तो आपका आंसर होगा वेव में। किस पर्पज के लिए? फॉर द मैकेनिकल बैलेंसिंग। इक्वलाइजर रिंग कहां यूज करते हैं? लैप में, वेव में, कहीं नहीं, या दोनों में? तो इक्वलाइजर रिंग लैप में यूज करते हैं। क्यों? फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। इफ देयर आर मेनी पैरेलल पाथ, तो जितने भी पैरेलल पाथ होंगे ना, समय वोल्टेज बराबर होना चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, बट अगर कई बार वोल्टेज बराबर नहीं होता तो उस वोल्टेज को बराबर करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग का। अगर वोल्टेज बराबर नहीं होता, करंट आएगी, दैट इज सर्कुलेटिंग करंट, तो इस सर्कुलेटिंग करंट को स्टॉप करने के लिए या वोल्टेज को बराबर रखने के लिए हम यूज करते हैं क्या? इक्वलाइजर रिंग का। So this is difference between lap and wave. Number of parallel path, this is P, high current and low voltage, this is high voltage and low current। brushes is equal to number of pole always, brushes is equal to 2। equalizer ring is used for the uniform distribution of voltage, no equalizer ring, no need of dummy coil, here dummy coil is used for the mechanical balancing। बोलो हाँ या ना? मिलन का कहना है सर अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक यू सो मच मिलन। जिसको दिखता है सर मेहनत कर रहे हैं। ये लैप और वेव वाइंडिंग में डिफरेंस था। क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? टेल मी। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स थोड़ा सा घट जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज GNA एंड व्हाट इज MNA? व्हाट इज GNA एंड व्हाट इज MNA? जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस एंड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सपोज दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, सपोज दिस इज योर एक्सिस, दिस इज जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमारी डीसी मशीन नो लोड पे है, अगर हमारी डीसी मशीन किस पे है? नो लोड पे, या अगर हम कहें कि हमने आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दें या ये बोलें कि डीसी मशीन नो लोड पे है, तो GNA और MNA कोइंसाइड करते हैं। GNA और MNA क्या करते हैं? कोइंसाइड। जिस दिशा में GNA उसी दिशा में MNA। व्हाट इज GNA? अगर हम कहें कि
हमने आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया, तब जो न्यूट्रल एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड जीएनए, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। और अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करें तब जो न्यूट्रल एक्सिस होता है दैट इज एमएनए। मान लीजिए जीएनए इधर है और एमएनए इधर है, दिस इज GNA, दिस इज MNA। GNA इज न्यूट्रल एक्सिस, MNA इज आल्सो न्यूट्रल एक्सिस, बट GNA तब का न्यूट्रल एक्सिस है जब हम ये मान के चलते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कुछ नहीं, हमने उसको हटा दिया, तब जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज GNA। और अगर हम आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कंसीडर करें तब जो न्यूट्रल एक्सिस होगा दैट विल बी MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। सो व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इज टेकन देन द न्यूट्रल एक्सिस इज दिस वन, व्हेन आर्मेचर रिएक्शन इज नेग्लेक्टेड देन द न्यूट्रल एक्सिस इज दिस वन। क्वेश्चन आता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है ये घूमता किधर है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किधर घूमता है, ये तो आपको पता है। अगर नो लोड पे है तो GNA and MNA will coincide, will overlap, and if machine is loaded then GNA and MNA will be in different direction. So in which direction your neutral axis rotates, or in which direction your MNA rotates? If machine is unloaded, GNA MNA in same direction. Now MNA is in this direction. तो किस डायरेक्शन में घूमता है न्यूट्रल एक्सिस? नितेश का कहना है क्लास कब तक चलेगी? 10 मिनट और, 10 मिनट और चलेगी आपकी क्लास, ज्यादा लंबी नहीं। अर्णव का कहना रियली अप्रिशिएटिंग। यस, जितेंद्र कुमार इज राइट। अगर आपका डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर जिधर घूमेगा उसी दिशा में आपका न्यूट्रल एक्सिस घूमेगी। मींस द न्यूट्रल एक्सिस रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर। जिधर जनरेटर घूमेगा उधर ही आपका घूमेगा। ये सब पूरी वर्किंग जब आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आता है, मगर याद ये निष्कर्ष ही रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट के लिए कि जिस डायरेक्शन में जनरेटर घूमता है उसी डायरेक्शन में एमएनए घूमता है। अगर जनरेटर इधर घूम रहा है तो एमएनए इधर घूमेगा, जनरेटर इधर घूम रहा है तो एमएनए इधर घूमेगा। या इसे ही दूसरी दिशा शब्दों में आप कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में मोटर घूमती है उसके उल्टी दिशा में एमएनए घूमता है। आप या तो ये बोल दो जैसे मोटर है तो अगर मोटर इधर घूम रही है तो एमएनए उधर उल्टा घूमेगा, और जनरेटर है तो जिधर जनरेटर घूमेगा उधर ही एमएनए घूमेगा। ठीक है, स्वागत है आकाश आपका भी। सो जिस दिशा में मोटर घूमती है उसके उल्टी दिशा में घूमता है न्यूट्रल एक्सिस, और जनरेटर में जिस दिशा में जनरेटर घूमता है उसी दिशा में घूमती है न्यूट्रल एक्सिस। अगर जनरेटर नो लोड पे है या आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड है तो जीएनए एमएनए कोइंसाइड करते हैं, और अगर मशीन पे लोड आ गया या आर्मेचर रिएक्शन को हमने माना कि आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तो जीएनए एमएनए डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। बात आ रही समझ में? अब क्वेश्चन आता है कि आर्मेचर रिएक्शन को आप मिनिमाइज कैसे करोगे? हाउ यू कैन मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन? हाउ? टेल मी हाउ यू कैन मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज करने के 2-3 तरीके हैं। देखो ये मान लो है, एक तो यहां कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं दैट इज आइडेंटिकल टू आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बिल्कुल आर्मेचर वाइंडिंग जैसी होती है, करंट का मैग्नीट्यूड भी वही होता है जो इसमें होता है, बट डायरेक्शन जो करंट की होती है इसकी उल्टी होती है। और एक होता है इंटरपोलर वाइंडिंग, एक होती है यहां पे इंटरपोलर वाइंडिंग। ठीक है, सो दिस इज इंटरपोलर वाइंडिंग, दिस इज कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, ये इस एक्सिस के अलोंग डी एक्सिस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस या पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस के अलोंग आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करती है, डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज अ वाइंडिंग आइडेंटिकल टू आर्मेचर वाइंडिंग बट इट इज एक्साइटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट टू दैट ऑफ आर्मेचर करंट। मैग्नीट्यूड इज सेम but direction is opposite for the current. So compensating winding neutralizes the armature reaction, compensating winding neutralizes the armature reaction along d axis, and this is interpolar winding or compole या commutating winding या commutating pole. This is commutating pole, commutating pole, COMPOLE, or this is compole, or this is also called interpole. So this is interpole, this is commutating pole, or this is compole, right? And the winding is called interpolar winding. So the function of interpolar winding is what? To neutralize the armature reaction along this axis. This axis is called Q axis or interpolar axis. And the direction of the function of compensating winding is to neutralize the armature reaction along direct axis. तो compensating winding जो होती है इसका काम आपने देख लिया, interpolar winding का काम आपने देख लिया। interpolar winding का एक काम और होता है क्या?
इंटरपोलर वाइंडिंग का एक काम और होता है, एक तो इंटरपोलर वाइंडिंग इस एक्सिस के अलॉन्ग आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करती है, दूसरा कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए या कम्यूटेशन को स्पार्कलेस करने के लिए या फिर बेटर कम्यूटेशन के लिए भी हम इंटरपोलर का यूज करते हैं। इंटरपोल जो होता है ना, जो रिएक्टेंस वोल्टेज आपका आता था, आपने पढ़ा होगा, उस रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज करने का काम करता है, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज जो करंट रिवर्सल है उसको होने नहीं देता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग वगैरह होती है। तो इंटरपोल का एक काम एक तो है, ये है टू मेक द कम्यूटेशन स्पार्कलेस, टू मेक द कम्यूटेशन स्मूथ, टू मेक द बेटर कम्यूटेशन, और दूसरा फंक्शन है टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन अलोंग Q एक्सिस, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम है टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन अलोंग D एक्सिस। क्वेश्चन ये आता है, yes, to improve the commutation you can say the function of interpole is also to improve the commutation, या to improve the to make the commutation sparkless, और दूसरा फंक्शन है आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करना। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो करंट होती है या इसमें जो करंट होती है और इसमें जो करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। द करंट इन इंटरपोलर वाइंडिंग, द करंट इन आर्मेचर वाइंडिंग एंड द करंट इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज सेम इन मैग्नीट्यूड। हाउ इट इज सेम? It means they all are connected in series. Interpolar winding current magnitude is IA. Compensating winding current magnitude is IA. Armature winding current magnitude is IA. IA means armature current. It means they are in series. Suppose this is armature. This is suppose compensating winding. This is suppose interpolar winding. So they all are in series. Interpolar, compensating or armature. So that the current value is same. Right? The question is asked that the MMF produced in interpolar winding is proportional to. So the MMF means MMF produced in interpolar winding is directly proportional to IA, because MMF depends on what? MMF is responsible for the flux, और फ्लक्स किससे आता है? करंट से। तो आपका जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स होगा या इंटरपोलर वाइंडिंग का फ्लक्स होगा वो डिपेंड किस पे करता है? आर्मेचर करंट पे। एक ऑप्शन रहेगा 1/IA, एक रहेगा IA स्क्वायर, एक कुछ और रहेगा। तो जो फ्लक्स आपका जो MMF या फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे? IA पे। इसका मतलब ये सब किस में होते हैं? सीरीज में। बात आ रही समझ में या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या देखा कि कम्यूटेशन को बेहतर करने के लिए हमने इंटरपोलर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए भी हमने इंटरपोलर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया। द MMF और द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस और दिस मीन्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग और इंटरपोलर वाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। एक होती है ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, वहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज डबल ऑफ नंबर ऑफ पोल। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग A इज इक्वल टू P, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग A इज डबल ऑफ P मींस A इज इक्वल टू 2P। The polarity of interpole is next main pole ahead in case of generator and next main pole behind in case of motor. आप अगर इसको समझ सकते हो तो मैंने बोल दिया the polarity of interpole is next main pole ahead। अगर मान लीजिए जनरेटर है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसकी पोलरिटी पता करनी है। जिधर जनरेटर घूम रहा है ना, जस्ट अगला पोल देखो, ये मान लो साउथ है तो साउथ होगा। मान लो इसकी पोलरिटी पता करनी है, जनरेटर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो जस्ट अगला पोल कौन सा? ये जो पोल होगा वो यहां छाप दो। और अगर ये मोटर होगा तो जो जस्ट पिछला पोल छोड़ के आया होगा वो पोलरिटी होगी। मान लीजिए मोटर है, मान लो मोटर ऐसे ऐसे घूम रहा है, मान लो मोटर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसकी पोलरिटी पता करनी। जस्ट कौन सा पिछला पोल छोड़ के आया है, ये पोलरिटी यहां पे छाप दो। ऐसे घूम रहा है, इसकी पोलरिटी पता करनी। जो पिछला पोल जस्ट छोड़ के आया उसको देखो कौन सा, ये छाप दो यहां पे। तो ये द पोलरिटी ऑफ इंटरपोल इज नेक्स्ट मेन पोल अहेड इन केस ऑफ जनरेटर एंड नेक्स्ट मेन पोल बिहाइंड इन केस ऑफ मोटर। ये और ये मेन पोल होते हैं। दिस इज नॉट मेन पोल, दिस इज नॉट मेन पोल, दिस इज नैरो इंटरपोल्स आर प्रोवाइडेड। फ्रंट पिच, बैक पिच, अरे बहुत कहानी है। अभी तो वाइंडिंग वगैरह पे चले गए, तो वाइंडिंग पे चले गए, फिर तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल लेयर, डबल लेयर,
यहां तक जो पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जो आज पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बाकी का जो पार्ट रह गया आप कह रहे हो फ्रंट पिच बैक पिच, एक तरीके से वाइंडिंग का पार्ट है तो खैर डीसी मशीन में पढ़ाया जा सकता है कि फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच क्या है, कम्यूटेटर पिच क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। थक गए हो क्या आप लोग? बिजॉय दास का कहना है सर बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ तो शुरू में ही बता दिया, बाकी जब आप कभी डिटेल में मशीन पढ़ोगे तो आपको बैक ईएमएफ के बारे में बताएंगे। रोहित चौधरी का कहना है सर कल से फुल कोर्स स्टार्ट होगा क्या? एसएससी जेई का यूट्यूब पे कल से लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक तरीके से क्रैश कोर्स टाइप का है। जितना सिलेबस हो पाएगा एसएससी जेई के एग्जाम तक को करा दिया जाएगा। निखिल बोले सर आपने पढ़ाया और कोई डाउट हो इस गुंजाइश ही नहीं। क्लास टाइमिंग सर, कल की मेरी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 10 से 11 होगी कल से मशीन की। जो मेरे क्लास की टाइमिंग होगी वो है 10 से 11 रात में यूट्यूब पे एसएससी जेई वाला जो चैनल है, आप सर्च करना अनअकैडमी एसएससी जेई, वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो उस पर जो एक तरीके से दौड़ा भगा के चीजें समझाई जा सकती हैं उतना काम आपका हो जाएगा। आकाश यादव बोल रहे हैं हाय सर। तो आज जो डीसी मशीन रिवाइज कराई गई कुछ तो पल्ले आपको पड़ा होगा। एक तरीके से अगर आप आंखें बंद करके वीडियो चला लो और यूट्यूब पे और सुनते रहो, और आपने अगर पढ़ाया तो आपका रिकॉल होता जाएगा, सब कुछ रिकॉल होता जाएगा। नितेश बोल रहे हैं एसएससी जेई की टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग आप कल देख लेना किस टाइम पे क्या क्लास हो रही है। मेरी क्लास की टाइमिंग 10 से 11 PM है। बाकी इलेक्ट्रिकल की क्लासेज आई थिंक 5 से 6 और 6 से 7 हैं। ठीक है, निखिल बोल रहे हैं सिंक्रोनस मशीन का सेशन भी लाइए सर। खुशहाल सोनी बोल रहे हैं यस सर। बाकी जो लोग प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, प्लस पे भी कोर्स चल रहा है, वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। जो लोग यूट्यूब से काम चलाना चाहते हैं, यूट्यूब पे कल से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लक्ष्य बैच नाम दिया गया है। कल से स्टार्ट हो रहा लक्ष्य बैच, जिसमें 3 सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे पैरेलली, 1-1 घंटे क्लासेज होंगी तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, और प्लस पे 2-2 घंटे क्लासेज चल रही हैं हर 6 घंटे पर डे। तो अगर प्लस कोर्स आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मेरे पास कमेंट आ रहा था सर यूपीपीसीएल का बैच स्टार्ट करिए। जो बैच चल रहा है अभी अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी में, वो बैच एसएससी जेई के अलावा यूपीपीसीएल, जेई, एई और जितने भी राजस्थान के एग्जाम हैं उन सब एग्जाम के लिए है, वो सिर्फ एसएससी जेई के लिए नहीं है। एसएससी जेई के एग्जाम एक बार खत्म होगा तो और भी जो सब्जेक्ट बाकी आते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर, ईएमएफटी वगैरह, वो भी कवर कराए जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी अगर आपको और कोई क्वेरी है अनअकैडमी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, एसएससी जेई से रिलेटेड, तो आप इस पे फेसबुक आईडी आप पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो आप। राजकुमार सिंह 730@gmail.com। ठीक है, पीटी चेतर का कहना आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैं अभी जो बैच प्लस पे चल रहा है उसमें नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों, और इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट और नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट, ये दो मैं पढ़ाऊंगा एसएससी जेई के एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद एग्जाम एक बार जब खत्म हो जाएगा फिर कोई और सब्जेक्ट उठाएंगे, लाइक जो भी आप लोगों की डिमांड रहती है। ठीक है, क्योंकि एक साथ एक ही 3 महीने के पीरियड में सारे सब्जेक्ट पढ़ा के ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी नेटवर्क और मशीन में पढ़ाऊंगा आपको प्लस पे,
बाकी पावर सिस्टम और मेजरमेंट खेमेंद्र और राहुल सर पढ़ाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना। चिंटू करे सर पसीना आ रहा है, थक गए हैं, आवाज नहीं निकल रही है। चिल्ला मैं रहा हूँ, थक चिंटू रहा है। और कुछ कहना है, पूछना है आप लोगों तो बताइए। एनीथिंग एल्स? नितेश बोल रहे हैं यूट्यूब वाला क्लास इसी चैनल पर होगा या एसएससी जेई वाला के चैनल पे? यूट्यूब पे जो क्लासेज होंगी एसएससी जेई क्यों, एसएससी जेई वाले ही चैनल पे होंगी, इस चैनल पे नहीं होंगी। एसएससी जेई या जेईई की जो भी क्लासेज होंगी वो एसएससी जेई वाले चैनल पे ही होंगी। आज के बाद, कल से, आज तक हो रही थी, कल से लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है तो एसएससी जेई पे ही चलेगा। तो उस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लिंक दिया होगा। रोहित चौधरी का कहना यूपीपीसीएल एई स्ट्रेटजी। देखिए कल यूपीपीसीएल में नोटिफिकेशन आया है टीजी 2 के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ग्रेड 2 के लिए यूपीपीसीएल में कल नोटिफिकेशन आ गया। तो हो सकता है कुछ महीने बाद जेई का और एई का भी आ जाए, जेई का और एई का। तो स्ट्रेटजी में क्या है कि आप नॉन टेक्निकल थोड़ा थोड़ा करते चलो, ज़्यादा तो है नहीं, नॉन टेक थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी जीएस वगैरह है। टेक्निकल आपका अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल में क्या पढ़ोगे आप, कई बार पेपर बहुत आसान आता है, जैसे इस बार का पेपर आया था काफ़ी इजी आया था, बहुत टफ नहीं आया था। और ज़्यादा से ज़्यादा ईएस और गेट के क्वेश्चन उठा लेगा वो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के जेई और गेट के ईएस और गेट के क्वेश्चन कर लेते हो और जेई वगैरह के क्वेश्चन कर लेते हो तो टेक्निकल आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गेट के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके पूछ लेंगे या ईएस वगैरह के कॉपी पेस्ट करेंगे बस, या तो फिर जेई का जो चल रहा है क्वेश्चन बेसिक बेसिक वो पूछ सकते हैं कई बार। तो कई बार पेपर टफ आता है, कई बार आसान आता है। टफ में नई क्वेश्चन नहीं, नया क्वेश्चन नहीं डालते हैं वो, वही गेट का कॉपी कर देते हैं। कल कब शुरू करेंगे लोगों का कहना है, कल आप देखना जा करके टाइमिंग, आई थिंक 5 से 6 और 6 से 7 बाकी की क्लासेज। मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, इसलिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि भी कल पहली क्लास है लोगों की। मेरी क्लास 10 से 11 बजे तक के बीच में है, ये मैंने अपना टाइम दिया है रात में 10 से 11 मशीन का। सिंटू सिंह बोल रहे हैं क्या गेट के टफ क्वेश्चन भी आते हैं? गेट के क्या, एक बार आप 2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर तो ठीक ही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, कुछ परसेंट कई बार आ जाते हैं, डिपेंड करता है। यूपीपीसीएल वगैरह ऐसा एग्जाम होता है जहां पे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट बहुत होते हैं। नया क्वेश्चन सिर्फ गेट वेट के एग्जाम में ही बनता है और बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही होता है। तो मान लीजिए गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए या कई बार कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो कुछ बच्चे गेट के आंसर रटे बैठे होते हैं, डिजिट भी नहीं चेंज करते हैं वो। तो कुछ क्वेश्चन गेट के आप सॉल्व कर लेना, एटलीस्ट 1 मार्क्स के तो कर ही लेना। ईएससी के क्वेश्चन कर लो अगर आप यूपीपीसीएल एई की तैयारी कर रहे हो। जेई में तो देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता यूपीपीसीएल जेई में, जेई में बहुत टफ नहीं आता, एई में तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। रोहित चौधरी का कहना है हाउ टू टैकल यूपीपीसीएल एई इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू की कहानी तब आएगी जब आप रिटन का एग्जाम क्लियर करोगे, और रिटन के एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इंटरव्यू की अहमियत तब बढ़ जाती है जब आप बिल्कुल बाउंड्री पे रहते हो कि कट ऑफ से 1 ही 2 नंबर ज्यादा है, फिर आपको मैक्सिमाइज करना होता है इंटरव्यू में। तो सब चर्चाएं तब की जाएंगी जब एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए, इंटरव्यू आप देने जाओ, तब आप पूछो तो फिर उसकी सही चर्चा की जाएगी। अभी वैकेंसी आने दो, पहले एग्जाम आप रिटन निकालो, देन वी विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। और अगर रिटन में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर इंटरव्यू कैसा भी हो आपका सिलेक्शन पक्का है। निखिल का कहना है नेटवर्क थ्योरी सर कब स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे? अभी नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं है मेरा यूट्यूब पे। अभी तो नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन कराया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछले महीने मई महीने में हुआ है इस चैनल पे, तो इसलिए इस महीने मशीन स्टार्ट किया है। प्लस पे मैंने नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया, तो आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे आ सकते हो। अभी इस अगले 1 महीने तक तो नेटवर्क थ्योरी नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो प्लस ज्वाइन करना चाहो आप में से कोई भी गेट ईएससी कैटेगरी में या जेई कैटेगरी में तो आप आ सकते हो। और डिस्काउंट के लिए आपके पास कोड दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, मेरा कोड है RK11, यूज दिस कोड एंड गेट द डिस्काउंट। आकाश यादव बोल रहे हैं यूपीपीसीएल जेई में बीटेक अप्लाई नहीं कर सकता? नहीं, यूपीपीसीएल जेई में बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बीटेक है तो आप एई में अप्लाई कर सकते हो। उत्कर्ष बोल रहे हैं एसएससी जेई में गेट का आता है? नहीं, एसएससी जेई में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एसएससी जेई में इक्का दुक्का क्वेश्चन गेट का आ सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन गेट के नहीं आएंगे। 30 सेकंड का टाइम मिलता है, कहां से गेट का क्वेश्चन कर लोगे?
2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने रहते हैं, लगभग 30-35 सेकंड का टाइम मिलता है क्वेश्चन पे। गेट का क्वेश्चन आएगा तो कहां से कर ले जाओगे, कैलकुलेटर तो होता नहीं। मगर कुछ फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ जाए कि क्यूब है, क्यूब में 12 साइड है और हर में एक एक ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये सब तो रटा होना चाहिए कि 5/6 R होता है। तो इस टाइप के कुछ भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो सब रटा होना चाहिए। कि कोई क्वेश्चन अच्छा ईएस में आया तो कॉपी हो सकता है जेई में या किसी एग्जाम में, या गेट में आया वो कॉपी हो सकता है, बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आएंगे ही आएंगे। सिंटू सिंह का कहना है सर मैं एसएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, यूपीपीसीएल एई के लिए कैसे करें। पहले एसएससी के जितने सब्जेक्ट हैं उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करो, जितने सब्जेक्ट एसएससी जेई के हैं पहले उसको अच्छे से तैयार करो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एग्जाम, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ गेट या ईएस के कैसे क्वेश्चन कहाँ से आपको करने हैं, वो आप मैसेज करके मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा। एक बार में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है तो फिर आप हौच पहुंच जाते हो, ये पढ़ें ये पढ़ें ये पढ़ें। अरे एक बार में तो एक ही बुक पढ़ोगे ना, एक बुक पढ़ के खत्म करो, 2 बार 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करके फिर दूसरी उठाओ, फिर तीसरी उठाओ। साहिल का कहना है सर एसएससी में टफ लेवल ईएससी जितना कंसीडर कर सकते हैं ना, बिल्कुल ईएससी के क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं एसएससी जेई में। आप ये मान के चलो कि आपका जो टफनेस लेवल एसएससी जेई का रहेगा वो ईएससी के प्री के लेवल का रहेगा, ईएससी का जो एग्जाम है उसके प्री के लेवल का रहेगा। उत्कर्ष बोल रहे हैं यूपीपीसीएल में एक ही वैकेंसी आ सकती, बिल्कुल आएगी वैकेंसी यूपीपीसीएल में ई और जेई दोनों की। अब कब आएगी, महीने बाद 3 महीने बाद, वो बस पता नहीं है, लेकिन आएगी तो काम बहुत तेज होता है। अभी कल परसों में यूपीपीसीएल में TG2 का नोटिफिकेशन आया और दे रखा है एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट अगस्त लास्ट में, जून में नोटिफिकेशन आया, अगस्त में एग्जाम हो गया 2 महीने में। तो अगर कोरोना की कंडीशन बहुत खराब नहीं हुई तो एग्जाम हो जाएगा अगस्त में। टायरॉन विल्स का कहना है अंकित सर के पढ़ाने में फेल आता है, वो चीज़ मिसिंग है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए विल्स। आपका प्यार जो है उस प्यार को मैं भी प्यार करता हूं, आपका प्यार जो है उस प्यार से मैं भी प्यार करता हूं। साहिल ओके सर। प्रभाकर बोल रहे हैं जेबी गुप्ता बुक कैसी है सर। ठीक है, जेबी गुप्ता बुक एई वगैरह के एग्जाम के लिए बुक अच्छी है, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, फॉर एई एग्जाम यू कैन सॉल्व दैट बुक। देखिए मेरा बस ये कहना है, कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो, सीधी सी कहानी आप समझो, एई का है मान लीजिए, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कराती है उसको नए क्वेश्चन नहीं बनाती है, वो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करती है। कहाँ से, अब या तो वो हो सकता है साउथ इंडिया के किसी एग्जाम से कॉपी कर ले, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है कि उड़ीसा के स्टेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो 70% क्वेश्चन आपके यूपी के क्वेश्चन एग्जाम में आया, यूपीपीसीएल में मैच कर गया। तो कई बार मान लीजिए टीसीएस एग्जाम करा रही है, वो क्वेश्चन का हेर फेर कर रही है, यूपी वाला क्वेश्चन साउथ इंडिया में डाल दिया, मुंबई वाला क्वेश्चन केरला के एग्जाम में डाल दिया, ऐसे डालते रहते हैं। तो कम से कम जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ईएससी के 1 मार्क्स ईएससी के क्वेश्चन या गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इतने तो आप समटाइम सॉल्व कर ही लो अगर आप ए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी जेई की आप तैयारी कर रहे हो तो भी ईएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालो। आकाश बोले सर आप मस्त पढ़ाते हैं। निखिल आपके सिखाने की कला हटके है। खुशहाल बोल रहे टैरोन, टैरोन विल्स पागल है। नहीं नहीं कोई पागल नहीं, हर आदमी किसी किसको किससे मोहब्बत हो जाए कौन जानता है। हमको किसी और से मोहब्बत हुई, आपको किसी और से मोहब्बत हुई, अरे एक आदमी को दो से भी तो मोहब्बत हो सकती है। आकाश बोल रहे मैं तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करता। सिंटू सिंह बोल रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए सर।
मेल आईडी दी है, इस पे आप कांटेक्ट करना, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर मांगना आप, या जो भी नंबर वो मैं दे दूंगा, बट कांटेक्ट हियर, बिकॉज यहाँ पे नंबर देने का मतलब है बच्चे कभी भी कुछ भी मैसेज करते हैं, तो जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो 2 स्टेप फॉलो करते हैं, पहले मेल आईडी पे मैसेज करते हैं, फिर वहाँ से नंबर मैं दे देता हूँ आपको, नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मेल करना, उसके बाद हम व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन करेंगे, डोंट वरी। खुशहाल सोनी प्रभाकर का कहना है सर यू आर बेस्ट। तो खत्म की जाए आज की कहानी या और कुछ कहना है? और कुछ कहना है आप लोगों को, कुछ पूछना है तो बताइए, या खत्म की जाए? रात के 12:30 बज रहे हैं, रात के 12:30 बज रहे हैं, सुबह फिर 11 बजे से मेरी क्लास है। प्रवीर हल्दर का कहना है सर योर क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, तो आखिरी में एक शायरी जो बोली थी उसको सुना ही देते हैं। जीपीएससी के बारे में किसी और दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। एक लास्ट शायरी जो पेंडिंग थी उसको सुना के आज की कहानी खत्म करते हैं। उत्कर्ष अच्छी बुक है, यूथ भी बुक अच्छी है जेई के एग्जाम के लिए, थोड़ी सी एरर्स उसमें ज्यादा है तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना, बाकी क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी जो कत्थई सी आंखें हैं ना, सब है उसी में। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जब से वो मुझसे रूठी, जब से वो मुझसे रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। यानी वो रूठी तो सब रूठ गए। जब से वो मुझसे रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़ के वो भी कहां पहले जैसी है, उसका भी मन नहीं लगता है अब। मुझसे बिछड़ के वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। टिल देन एंजॉय। और कोई अगर क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस कोर्स के लिए RK11 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई तकलीफ है तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो। बाकी हमारी आपकी मुलाकात हर दिन अब कल से होती रहेगी। सो मिलते हैं कल। टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड गुड नाइट एंड जय हिंद। Message here if you have any more doubt. I'm ending the class now.